Hello everyone. Good evening. Just make me clear that voice is clear and screen is visible. Just clear these two things. Yes, ma'am, it is clear. It is clear, ma'am. All right. Thanks a lot and a warm welcome. And I hope all are perfectly doing. So, first of all, since we are meeting for the first time in this year, so happy new year to all. And I really wish that whatever you wish comes true this year itself. So, you have to make this year more best. Okay, all my best wishes are with you, and may you achieve whatsoever you wish. All right, so since we know that no prelims is approaching, and I hope all are just like no studying hard to clear the prelims. But before prelims, like no, before sitting in the prelims, we should have some of the things clear with respect to the mains, so that we should not fall short of the mains. In any case, we clear the prelims. All right, because it is really not a wise decision to clear the prelims without having a short preparation of the mains. So, like, no, we will be having a discussion with the Princey Gupta. And before this, we had a discussion, long, comprehensive discussion with the Abhishek Sharma, which is again uploaded on the YT. So, if you wish, you can watch through that. And today in the frame, we are having the Princey Gupta. So let us have some of the discussions, and whatever things would be of the important note will be noting here for your reference. All right. So Princey, you can start with the a quite introduction of yourself, and then definitely you can share about you. So yeah, please go on. Your voice is not clear, Princey. Make sure that you have no, you are not on mute. Please check it. All right, Princey, there is some issue with your system. I don't know. Please check it. Or no, it would be better if you try to leave this chat and join once again. All right. Meanwhile, let me continue till she's checking her system. So again, no, this was her first mains, and she has given the prelims last year. But anyway, that was not her time. But this time, she could clear the mains, and we would be having the marks once the final result are out, so we'll be going through that as well. And moreover, her optional is economics. All right, Quincy, is it working fine? Can you speak Am now? I audible now? Yeah, perfectly audible now. Please continue. Ma'am, but there is an issue. I wanted to show something on graph. So I need laptop for that, and I'm using my laptop, but I was not able to unmute myself there. In that case, what you can do is if it is a file, you can just forward it to me on the Telegram so that I can open it. If anything is sort of. Yes, ma'am. File I can forward you, but the thing is, I wanted to show something on graph. I need to draw something there. Okay, you need to draw something. Yes, ma'am. All right. Okay. Let me know if I can draw it. Can we have a Google Meet, ma'am, please? All right, Quincy. Let us do one thing. If meanwhile, if it is possible, here else we'll go with the that you are saying Google Meet. If it is possible for the time 10-15 minutes, continue here. Then we'll go there. Is it fine? Okay, ma'am. Sure, ma'am. I have sent you the file. All right. Wait. Okay, sorry everyone for the disturbance. Hi, good evening everyone.
I'm Princy Gupta from Lucknow, and it was my second attempt and first mains. And I'm not very much different from you. I feel कि मैं भी आपका ही हिस्सा, and I think bilingual works for you, right? Is there anyone from South who have issue with Hindi or bilingual language? Please let me know earlier only. Yes, ma'am. Hello. Yes, ma'am. Okay, so okay, I Fine, will from do South. it in English only then. Okay, no issue. So it was my second attempt and first mains, and I am not very different from you. I'm just similar like you. Even during the mains, I was like feeling like कि कैसे होगा, and so much issues was there. Okay, so I'll start with the answer writing, what I have learned, and I'll share all the experiences with you. ठीक है, एंड सो दैट आप उसको समझ के और अपनी स्ट्रेटेजी फॉर्मुलेट कर पाए. सो मैम, कैन यू गो विद द नेक्स्ट स्लाइड प्लीज. इसके पहले इज देयर एनीथिंग यू वांट टू आस्क फ्रॉम मी? देन आई विल स्टार्ट. Anyone, any question, any query, what you are expecting from me? Princy, let us continue with the session first. Then in meanwhile, like in last, if they have, we can definitely address it, right? Okay, ma'am. Okay, so actually what happens is when we are not giving mains and we are preparing like an aspirant before going for the actual mains exam, हमारे अंदर होता है कि हमें लगता है कि हम पढ़ ले, बहुत सारा पढ़ ले, जितना पढ़ेंगे और उतना ही हम आंसर डिलीवर कर पाएंगे. बट एक्चुअल सेंस में ऐसा होता नहीं है. दैट्स वाई मैंने यहाँ पे मिथ्स एंड रियलिटी का आई टुक दैट ऑन दिस स्लाइड पर्टिकुलरली, कि हमारा परसेप्शन होता है कि इफ वी रीड मोर we will be able to do better answer writing, but it doesn't happen in actual sense. What happens is, even हमारे पास if we have 10 points, we are not able to deliver that 10 points only. हम वहां पे 2, 3 और even 4, 5 at max दे के आते हैं. So that is something we need to realize कि हमें ज्यादा नहीं पढ़ना है. हर टॉपिक से 2-3 points is enough. Even for the newspaper हम उसमें घुसे चले जाते हैं, but we don't need to do that. We need to focus on 2-3 priority point and that's it. Because after that एक certain point के बाद से आपको repeated questions ही आएंगे, मतलब repeated points ही आएंगे, उसको आपको mold करना है. ठीक है, तो the very first thing, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ना है, कुछ चीजों को पढ़ना है, but the thing is कि जो चीजें पढ़नी है उसको internalize करना है. अगर आपने women पे 2 डेटा याद किया है तो that should be internalized in you, rather than आपने 50 डेटा पढ़ लिया और उसमें से 2 डेटा भी आपको याद ना हो. तो इट सेम गोज विद एवरी सब्जेक्ट, एवरीथिंग. आपको जो भी पढ़ो उसको इंटरनलाइज होना चाहिए. अगर आपके मन में आपसे रात के टाइम पे इफ समवन इज आस्किंग कि नींद में भी कि व्हाट इज दिस, यू शुड बी एबल टू डिलीवर समथिंग. ठीक है, तो इंटरनलाइजेशन कैसे आएगा? वो रिविजन से आएगा. तो जितना रिवाइज करेंगे उतना ही बेटर होगा, rather than going for large content. सेकेंड थिंग, सेकेंड परसेप्शन होता है कंप्लीट सिलेबस बिफोर आंसर राइटिंग. द थिंग इज, आंसर राइटिंग में हम सोचते हैं, क्योंकि जब हम आंसर लिखने बैठते हैं तो इट हैपेंस, इवन आपने सिलेबस पूरा किया हो या सिलेबस पूरा नहीं किया हो, दोनों ही टाइम पे होता है कि हमें सिलेबस हमें लगता है कि हम आंसर नहीं लिख पा रहे हैं, बिकॉज वी हैवंट कंप्लीटेड द सिलेबस, वी हैवंट कवर्ड इट एज अ होल. once we cover, then we will be able to do answer writing, but it doesn't happen. एक्चुअली होता क्या है कि हमारी टेंडेंसी होती है कि हमें जब कोई मुश्किल आती है, इफ वी आर फेसिंग एनी इशू, वी फील लाइक कि इसको डिले करते हैं. और वो डिले करने के लिए एक एथिक्स में होता है ईगो डिफेंसिव मैकेनिज्म. तो हम उस ईगो डिफेंसिव को पूरा करने के लिए हम क्या कहते हैं उसे, एक्सक्यूजेस देते हैं कि एक बार पूरा हो जाएगा फिर हम लिखेंगे. बट ऐसा नहीं होता. हम जब इवन सिलेबस पूरा होने के बाद भी जब हम आंसर राइटिंग करने जाते हैं तो हम 0 से ही स्टार्ट करते हैं. हमें लगता है कि ये क्या लिख दिया. ये सब आप लोग एक्सपीरियंस कर रहे होगे. अगर आपने अब तक स्टार्ट नहीं किया है और जब आप स्टार्ट करने जाओगे आपको खुद लगेगा कि ये कितना गंदा आंसर लिखा है. बट जस्ट रियलाइज कि आप कभी भी स्टार्ट करोगे आपको स्टार्ट 0 से ही करना पड़ेगा. ठीक है, तो इस वजह से सिलेबस कंप्लीट होने का वेट नहीं करना है. यू नीड टू स्टार्ट. जैसे रियलिटी में लिखा है, माइंड स्ट्रगल इवन आफ्टर रीडिंग, यू आर जस्ट प्रोकास्टिनेटिंग एंड डिलेइंग टू फेस द फियर ऑफ आंसर राइटिंग. दैट इज द मेन थिंग. ठीक है, थर्ड परसेप्शन है मेंस इज इजी आफ्टर प्रीलिम्स. ऑफन वी फील एक बार हो जाए प्री तो मेंस तो निकाल ही देंगे. एक्चुअली मुझे याद है कि मेरे एक फ्रेंड थे जो मेंस 2-3 बार दे चुके थे, एंड जब हम प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे थे तो हमें एक डर हो जाता है कि प्रीलिम्स की तैयारी हम जनवरी से स्टार्ट कर देते हैं.
मैंने फरवरी से पूरी तरीके से स्टार्ट किया था। एंड व्हेन आई आस्क हिम कि यू आर नॉट वरिड अबाउट द प्रीलिम्स, यू आर प्रिपेयरिंग फॉर मेंस, उन्होंने बोला कि देखो मुझे प्रीलिम्स का भय नहीं है, मुझे मेंस का है। आई फेल्ट लाइक कि अरे यार एक बार प्रीलिम्स हो जाए, मेंस तो मैं निकाल लूंगी। बट एक्चुअल जब मेंस का टाइम आया, देन आई रियलाइज कि जितना स्ट्रगल हमें प्रीलिम्स में करना पड़ता है उससे कहीं कहीं ज्यादा मेंस में करना पड़ता है। प्रीलिम्स में हम चीजों को याद कर रहे होते हैं, बट इन मेंस हमें वहां पे मेंटल, इमोशनल, फिजिकल एफर्ट बहुत ज्यादा लग जाता है। मेंटल इमोशनल तो चलो प्रीलिम्स में भी है, बट ये जो अलॉन्ग विद इट जो फिजिकल एफर्ट लगता है ना, कि आप दिन भर लिखे जा रहे हो, आंसर लिख रहे हो, वो बहुत ज्यादा हमारी हेल्थ पे इम्पेक्ट करता है। देयर वॉज अ टाइम व्हेन, क्योंकि प्रैक्टिस प्रीलिम्स में हमारी छूट चुकी होती है फॉर 4 और 5 मंथ्स, तो जब हम लिखने बैठते हैं तो हमसे लिखा नहीं जाता। और एक ऐसा भी टाइम आता है जब आप धीरे धीरे अपने आप को बूस्ट कर रहे होते हो कि यू स्टार्टेड राइटिंग, बट जैसे जैसे मेंस पास आता है, आपको डेली आंसर लिखने हैं, डेली पेपर देना है, डेली 2 पेपर भी देना पड़ता है समटाइम्स। एट दैट टाइम्स आई हैड टू टुक मेडिसिन। मैंने मतलब मुझे दवा खा खा के लिखना पड़ा था, बिकॉज मेरे हाथों में इतना पेन हो रहा था। तो दैट हैपेंस मेंस के टाइम पे, बहुत ज्यादा ये फिजिकल एफर्ट तो लगता ही है, प्लस मेंटल और इमोशनल तो है ही। और उसमें भी शायद ये मेरा फर्स्ट मेंस था, जैसे मुझे फर्स्ट प्रीलिम्स में हुआ था कि मेरी मेंटल हेल्थ काफी टोल हुई थी उस टाइम पे, उसी तरह से मुझे मेंस में भी अब पॉसिबली कि जब मेरा सेकेंड मेंस हो तो मुझे इतना मेंटल टोल ना हो जितना मुझे इस बार हुआ था। समटाइम्स आई गॉट एग्जॉस्टेड कि पता नहीं मैं इतना कॉस्ट लगा रही हूँ इस पे, ये होगा भी कि नहीं होगा। जब पूरे साल मैंने पढ़ाई की ये सोच के कि मेंस होगा तो आई विल लाइक एनी, बट जब ये सामने आता है तो रियलाइज कि नहीं लिखा जा रहा है, और ये होता है। और जब हम अपनी कॉपी का कंपैरिजन दूसरों से करते हैं, देन हमें और बुरा लगता है कि दे आर एबल टू डिलीवर दिस मच कंटेंट एंड आई एम लाइक ये क्या है। तो ये होता है। उसके बाद भी अगर मैं इस साइड पे बैठ के आपको ये सारी चीजें एक्सप्लेन कर रही हूँ, देन जस्ट मतलब इसके लिए तो आई थिंक आई एम द लाइव एग्जाम्पल जो इतनी सारी चीजें इश्यूज फेस कर रही है, एंड देन स्टिल अगर मीन्स क्लियर किया है, देन इट इज पॉसिबल। ठीक है, तो यहाँ पे ये कि परसेप्शन की सिर्फ प्रीलिम्स आसान है, मतलब मेन से तो आसान है, सॉरी मुझे ऐसा कहना तो नहीं चाहिए, प्रीलिम्स टफ है, अनसर्टेन है प्रीलिम्स। एक बार प्रीलिम्स हो भी जाए तो मेंस आसान नहीं है। मेंस के लिए आपको कंटिन्यू करना होगा, बिकॉज इतने अनसर्टेन प्रीलिम्स में अगर प्रीलिम्स एक बार हो जाए, उसके बाद से अगर मेंस ना होना, तो भी आपको फिर से उसी अनसर्टेन साइकिल में जाना होता है। इवन इस पूरे एग्जाम की यूनिकनेस ही यही है कि आपको प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, हर स्टेज पे अनसर्टेनिटी है। इवन एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू, अगर मेरा इंटरव्यू में नहीं होता है, पॉसिबली मेंस में नंबर कम आए हो, तो मुझे फिर से इस अनसर्टेन साइकिल में घुसना होगा। इसका सोल्यूशन यही है कि हम मेंस में इतना अच्छा डिलीवर कर ले कि हम श्योर हों कि हमारा मेंस तो हो जाएगा। और अगर हम इंटरव्यू, मेंस और ये प्रीलिम्स तीनों की प्रिडिक्टेबिलिटी देखें, तो मेंस की ऑलमोस्ट 50% है। प्रीलिम्स में भी आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते हो आज के टाइम पे कि विच काइंड ऑफ क्वेश्चंस गोना कम। जैसे 2023 का प्रीलिम्स जो हुआ था इतना अनसर्टेन था, इंटरव्यू के टाइम पे भी आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते हो। आप प्रिपेयर करके कुछ और गए हो, पॉसिबली वो कुछ और पूछ दे, उस दिन आपका टेम्परामेंट कैसा था, आपको किसी और चीज की वजह से डिस्टर्ब तो नहीं था, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग। बट मेंस में आपकी प्रिडिक्टेबिलिटी एटलीस्ट 50% होती है। आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस आप 10 to 12 क्वेश्चंस लिख लेते हो, 8 to 9 क्वेश्चंस ही होते हैं जो बहुत ज्यादा वेग होते हैं, तो वहां पे आप स्कोर कर सकते हो। इस वजह से भी मेंस की इंपॉर्टेंस काफी ज्यादा होती है व्हेन इट कम्स टू अश्योरिंग सिलेक्शन। ठीक है, तो इस वजह से भी मेंस फिजिकली एग्जॉस्टिंग तो है, ये मेंटल एज वेल एज इमोशनल के साथ साथ, एज वेल एज ये क्रूशियल भी है इन ऑल दी 3 स्टेजेस। सो मैम वी कैन गो फॉर द नेक्स्ट स्लाइड। अब इसके लिए क्या है कि मेंस का ये सारे जो पॉइंटर्स है ना, ये मेरे आज के नहीं है, मतलब ये नहीं है कि मैंने अभी सोच के लिखे, ये सारे पॉइंटर्स जस्ट मेरे मेंस देने के बाद के हैं। सो ये पूरे ऑनेस्ट और पूरी तरीके से, जो एक बच्चा होता है जो तुरंत मेंस दे के बैठा है और उसको ये सारी चीजें लग रही हैं कि नेक्स्ट टाइम अगर मुझे मेंस देना हुआ तो मैं ये सारी चीजें करूंगी, ये वो पॉइंटर्स है। जिसमें सबसे पहला है कि डोंट वेट टू फिनिश सिलेबस, बिकॉज ये गलती मैंने भी करी थी कि मुझे लगता था कि सिलेबस होगा तभी तो मैं लिख पाऊंगी, तो ये नहीं करना है, आपको आंसर राइटिंग स्टार्ट करना है। सेकेंड, राइट 5 आंसर्स डेली इन 35 मिनट्स टू सिमुलेट एग्जाम। होता क्या है कि जब हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं तो वो जो जितना मैंने बोला कि वी आर गोइंग विद 10 to 12 क्वेश्चन वी कैन राइट इजीली, बट दैट टू वो इजीली नहीं आता है। वो उस मोमेंट पे भी आपने इतने सारे कंटेंट में से वो जो आपने पढ़ा है वो वहां पे ला पाना भी इज एन इशू। इंटरनलाइज करना पड़ेगा, उसको बार बार रिवाइज करना पड़ेगा। प्लस
अपने दिमाग को उस तरीके से ट्रेन करना होगा कि उस 5 मिनट, एक क्वेश्चन के लिए आपको प्रोबेबली 7 मिनट्स लगते हैं। अगर आप देखोगे कि जो आपके 10 मार्कर होते हैं उसके लिए आपको 7 मिनट्स मिलते हैं, है ना। सो फॉर दैट आपको वो 7 मिनट्स के अंदर उसका जो बेस्ट कंटेंट है वो निकलना चाहिए, और वो ऐसे नहीं निकलेगा पढ़ने से। उसके लिए आपको दिमाग को ट्रेन करना होगा कि आपका दिमाग उस चीज के लिए रेडी हो कि 7 मिनट्स के अंदर वो सारा कंटेंट आ रहा है जो आपने पढ़ा है, और वो तभी आएगा जब आप लिखोगे, पढ़ने से नहीं आएगा। ये चीज मेरी खुद की एक्सपीरियंस से भी है, और ये जो सजेशन है सेकेंड वाला, आई वुड लाइक टू गिव अ क्रेडिट टू माई फ्रेंड हु मेट मी इन द एंड ऑफ द प्रिपरेशन फेज, मेंस के टाइम पे। उन्होंने मुझे, मैं अभी ये एक क्या कह सकते हैं कि एग्जाम के पहले, मेंस के रियल एग्जाम के पहले कभी भी मेरा पेपर हुआ नहीं था टाइम पे, मतलब पूरा ही नहीं हुआ था, और मेंस में मेरा एक भी क्वेश्चन छूटा नहीं। The biggest difference is this second point only. That person suggested me कि आप 5 आंसर्स डेली लिखो, विद इन 35 मिनट लिखो। ये लास्ट के मैंने 10 डेज में प्रैक्टिस किया था, एंड यू कैन इमेजिन कि इफ आई कैन डू वेल इन द एग्जाम जस्ट बिफोर, लाइक स्टार्टिंग जस्ट बिफोर द 10 डेज ऑफ दिस एग्जाम, देन अगर आप इसको डेली कर रहे हो तो कैन यू सी द डिफरेंस, यू विल फील इन योर सेल्फ। मतलब अगर मैंने 10 दिन में इस चीज को कवर किया, इसको मैंने प्रैक्टिस किया रेगुलरली, वो 10 दिन पहले से किया, 5 आंसर्स को 35 मिनट्स में लिखने का बार बार किया, और एग्जाम में मेरा पेपर नहीं छूटा। दैट वाज द बिगेस्ट अचीवमेंट आई कैन हैव इन मेंस, एंड आई थिंक उसकी वजह से ही मैं अभी आपको बता भी पा रही हूँ। ठीक है, तो ये चीज आपको करनी है, 5 आंसर्स करो 35 मिनट्स में। अगर डेली नहीं भी कर पा रहे हो तो इसको एटलीस्ट ऑल्टरनेट डेज पे करना है, बिकॉज ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा आपको कंटेंट मेमोराइज करने में, और आपके ब्रेन को सिमुलेट करने में कि वो आपको ऑन द स्पॉट वो कंटेंट दे पाए। ठीक है, थर्ड है बी प्रिपेयर फॉर अननोन क्वेश्चंस, ट्रेन योर माइंड अकॉर्डिंगली। हमारे साथ होता है ना कि हम क्वेश्चंस जब आता है तो हम सोचते हैं कि इसके बारे में तो हमें ये सारी चीजें पता है, और जो चीजें नहीं पता है हम गूगल करते हैं उसके लिए, है ना, और गूगल से हम कुछ पॉइंटर्स नोट कर लेते हैं। मैं भी ये करती थी, अगर आप कर रहे हो तो ये गलत नहीं है, बिकॉज आई वॉज वन ऑफ यू एंड आई वॉज डूइंग ऑल दोज थिंग्स की नोटिंग द कीवर्ड्स फ्रॉम द गूगल एंड देन राइटिंग द आंसर आफ्टर वॉचिंग, आफ्टर गोइंग थ्रू दोज कीवर्ड्स, कि चलो लिखते हैं, इन कीवर्ड्स को ऐड करते हैं। बट इससे क्या होता है कि हमारा माइंड ट्रेन नहीं हो पा रहा है टू फेस द अननोन क्वेश्चन। अननोन क्वेश्चन को फेस करने के लिए बेस्ट तरीका यही है कि क्वेश्चन आए तो उसको लिखो, वट एवर कम्स टू योर माइंड जस्ट राइट इट डाउन। वंस यू राइट देन कंपेयर विद समवन एल्स आंसर। पॉसिबली आप टॉपर्स की कॉपी ले सकते हो, वो क्वेश्चन ले सकते हो, एंड जस्ट स्टार्ट राइटिंग, एंड देन आफ्टर जब आपका क्वेश्चन उसका आंसर कंप्लीट हो जाए देन मैच विद देयर आंसर कि उन्होंने उसमें क्या पॉइंटर्स ऐड किए। जब आप गलती करोगे तो आपको याद भी रहेंगी वो लॉन्गर टाइम के लिए। सेकेंड, आपका दिमाग भी ट्रेन होगा इस चीज के लिए कि अगर अननोन क्वेश्चन आ रहा है तो उसको फेस कैसे करना है। ठीक है, फोर्थ है टेक अ टारगेट टू फिनिश सेक्शनल मेंस टेस्ट एंड few FLTs before focusing on prelims solidly, probably before Feb, because आज के टाइम पे prelims बहुत ज्यादा अनसर्टेन है, तो हमें टाइम तो देना पड़ेगा। People are suggesting कि start from the December और January itself. Possibly I feel कि जितना अनसर्टेन है कितना ज्यादा टाइम देंगे, मेंस तो हमें करना ही है, and मेंस is the crucial thing. So ideally मेरे हिसाब से February is the best time to start focusing on prelims. बट बिफोर दैट मेंस आपका श्योर होना चाहिए कि आपके मेंस में एक मिनिमम थ्रेशोल्ड हो गया हो। अब ये मिनिमम थ्रेशोल्ड क्या है, आंसर राइटिंग को कैसे प्रोसीड करना है, आई विल बी एक्सप्लेनिंग इन द ग्राफ यूजिंग, आई थिंक गूगल मीट पे कर सकते हैं। बाकी ये वे फॉरवर्ड था कि आप आंसर राइटिंग में कैसे आगे बढ़ सकते हो। मैम नेक्स्ट प्लीज। ये ग्राफ है जो अभी मैं कुछ देर में सजेस्ट करूंगी आगे। इसके बाद से यहाँ पे टारगेट्स एंड प्लानिंग। अब यहाँ पे एडवाइस मेरी ये है कि आप पहले एनालाइज कर लो खुद को प्रॉपर तरीके से कि आपकी स्ट्रेंथ एंड वीकनेसेस क्या है, आपको किस सब्जेक्ट में ज्यादा फोकस करने की जरूरत है, किस सब्जेक्ट में कम फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, फॉर मी जैसे मेरा इकोनॉमिक्स ऑप्शनल था, मैंने ऑप्शनल इकोनॉमिक्स की GS3 की आंसर राइटिंग बहुत कम करी थी। लास्ट के मैंने 10 डेज में ही जो किया था, उसके पहले मैंने इकोनॉमिक्स GS3 के लिए प्रॉपर तरीके से आंसर राइटिंग नहीं की थी। ठीक है, तो वो आपको डिसाइड करना होगा। ऐसा नहीं है वो मेरा ऐसा, आई वोंट से कि दैट वाज माय गुड स्टेप, बट आई हैड लिमिटेड टाइम एंड आई हैड टू फोकस ऑन लॉट ऑफ थिंग्स, तो मैंने थोड़ा सा उसको डिले किया था। बट जो सब्जेक्ट्स मेरे वीक पॉइंट पे थे उसको मैंने पहले फोकस किया। फॉर एग्जाम्पल ऐसे हुआ, एथिक्स हुआ, ये सारी चीजें मैंने डिले करते आए थे पूरे साल पढ़ने में कि पढ़ लेंगे। आई हैड कॉन्टेंट बट आई डिडंट एवर प्रैक्टिस आंसर राइटिंग फॉर दैट, तो मैंने उसको ज्यादा फोकस किया था उस मोमेंट पे।
ठीक है, और जीएस किया था, ऑप्शनल किया था, इस वजह से जीएस 3 थोड़ा सा रह गया था मेरा। तो ये आपको डिसाइड करना होगा कि आप खुद को एनालाइज करो, क्या पहले करना है, कितने को कितना टाइम देना है। सेकंड, प्लान साइंटिफिकली। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज माई होल मेंस प्लान जो मैंने किया था, और मैं बहुत इस मामले में आई वुड से कि मेरी जो मैनेजमेंट होती है वो थोड़ी अच्छी होती है, साइंटिफिक तरीके से होती है, मैं पूरा लिख के प्रॉपर तरीके से करती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने अपने पूरे प्लान को 4 स्टेजेस में डिवाइड किया था फॉर दैट 3 मंथ्स। जैसे जो फर्स्ट स्टेज था वो कंटेंट बिल्डिंग का था। अब यहाँ पे पता है, अब यहाँ पे एक इकोनॉमिक्स में एक टर्म है इंफॉर्मेशन असिमेट्री, ठीक है। उसी तरीके से मैंने एक वर्ड निकाला था एक्सपीरियंस असिमेट्री, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपीरियंस के साथ बैठी हूँ, तो मैं जो डिलीवर करना चाहती हूँ पॉसिबली वो आप ना समझ पाओ, और ये मेरे साथ हुआ भी है। लास्ट टाइम आई रिमेम्बर देयर वाज अ मैम फ्रॉम नेविगेटर ग्रुप ओनली, अदिति मैम, आई सॉरी अगर मैं नंबर नेम मिसमैच कर रही हूँ तो, बट शायद अदिति मैम थी, एंड शी वाज टॉकिंग अबाउट कि अगर आपका मेंस आ रहा है, मेंस देना है, तो उसके लिए कंटेंट बिल्डिंग पे काम करो। अब आई वॉज हैप्पी एट दैट टाइम जब उन्होंने ये चीज बोली, तो क्यों? क्योंकि मेरे पास पूरे सारे टॉपिक्स के कंटेंट अच्छे खासे थे, मैंने बहुत मेहनत करी थी, सारे मैगजीन से मैंने टॉपिक वाइज सबके कंटेंट बना रखे हैं वन नोट पे, ठीक है। बट दिस वॉज नॉट द कंटेंट व्हाट शी वॉज टॉकिंग अबाउट। कंटेंट बिल्डिंग मतलब कि एक टॉपिक पे 1 पेजर बना हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर बेसिक स्ट्रक्चर पे क्वेश्चन है, वी नो लॉट ऑफ थिंग, वी डू रीड लॉट ऑफ थिंग्स, वी हैव अ बुक इवन, है ना। इवन वन नोट पे मेरे उसके प्रॉपर तरीके से सारे एग्जाम्पल्स एंड ब्ला ब्ला ब्ला, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग्स वहां पे है। बट यहाँ पे कंटेंट बिल्डिंग का मतलब है कि उस बेसिक स्ट्रक्चर पे मुझे एटलीस्ट हाफ पेज में, नॉट इवन 1 पेज, हाफ पेज में उसके सारे कंटेंट उसमें आ जाए, जिसको मुझे एग्जाम के पहले रेफर करना हो, 1 दिन के पहले। तो वो कंटेंट बिल्डिंग की मेंस में आपको एग्जैक्ट पॉइंटर्स जो जो लिखने हैं वो सारी चीजें वहां पे हों। तो ये चीज में मुझे काफी टाइम लगा। फर्स्ट स्टेज था टिल 16 अगस्त तक मैंने ये किया था। अगर रिजल्ट आई थिंक 14 जून तक आ, सॉरी आई एम नॉट एबल टू रिकॉल द डेट, कब आई थी रिजल्ट? एनीवन कैन प्लीज टेल? आई थिंक 14 जून था, इफ आई एम रिमेम्बरिंग करेक्टली। ओके, जब भी हो, तो जब से आया था रिजल्ट उसके बाद से मैंने 16 अगस्त तक सिर्फ कंटेंट बिल्डिंग पे काम किया। और सिर्फ मतलब ऐसा नहीं है कि कंटेंट बिल्डिंग, क्या होता था कि मैं पॉलिटी पढ़ती थी, पॉलिटी पढ़ के और उसके सारे मतलब सारे टॉपिक वाइज मैंने उसके हाफ पेज में सबके कंटेंट बनाए, उसका सेक्शनल दिया, पॉलिटी का जो भी था इधर उधर से टेस्ट सीरीज से वगैरह वगैरह से मैंने सेक्शनल दिया, और इस तरीके से मैंने सारे सब्जेक्ट को प्रोसीड किया। मैं बार बार यही कहूंगी कि मैंने सारे सब्जेक्ट को किया एक्सेप्ट इकोनॉमी, बिकॉज इकोनॉमी मेरा ऑप्शनल में कवर हो रहा था, ठीक है। ये था सेकेंड स्टेज में मैंने किया एफिशिएंसी ऑफ स्केल। इसका मतलब ये मेरा चला 17 से 28 अगस्त तक। इसमें था कि मैंने उन जो मैंने सेक्शनल दिए थे उसके बाद से मैंने जीएस 1 2 3 4 ऐसे मैंने मूव किया उस पे, और उसके मैंने क्वेश्चंस लिखे। उसमें भी एक बहुत अच्छी एफिशिएंसी नहीं आई थी, बट एटलीस्ट बेटर देन व्हाट आई हैड स्टार्टेड विद, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीएस वाइज पेपर दिए। थर्ड स्टेज था एग्जाम टेस्ट। इसमें था कि अब मैंने जीएस वाइज भी दे दिया। थर्ड में 29 अगस्त से 7 सितंबर के बीच में मेरा था कि फुल एग्जाम टाइम टेस्ट देना है मुझे यहाँ पे, और यहाँ पे मैंने 2 बार वो दिया था, जीएस 1 2 एक दिन, जीएस 3 4 एक दिन, फिर इसके बाद से जीएस 1 2 एक दिन, जीएस 3 4 एक दिन। इस तरीके से ये मैंने 2 बार किया, फुल एग्जाम टाइम टेस्ट किया। और ये 2022 के पेपर का किया, प्लस एक और कोई कोचिंग का किया। इसके बाद से थर्ड स्टेज में मैंने किया थर्ड स्टेज यही फुल टाइम एग्जाम टेस्ट किया। अब थर्ड स्टेज इसके बाद आता है। थर्ड स्टेज 9 सितंबर से 11 सितंबर तक का मैंने किया। एफएलटी लगा मैंने, जितना भी मुझे मिल रहा था कि ये सब्जेक्ट को रिवाइज करना, एफएलटी लगाओ, फिर इसको रिवाइज करके एफएलटी लगाओ, इस तरीके से ये मैंने किया। फोर्थ स्टेज फाइनल प्रैक्टिस थी। अब ये मैंने वही फाइनल एग्जाम के लिए रखा कि इधर 11 के बाद से जो भी है ये मुझे करना है, अदरवाइज 14 के बाद से तो हमारा टेस्ट ही था। और एक चीज और, ये जो लास्ट के 10 डेज थे, आई थिंक 1 सितंबर से एंड 14 सितंबर तक, उसके बाद तो मेंस ही था पूरा, और इसमें मैंने हर दिन टेस्ट लिखा था। मतलब ऐसा लोग कहते हैं कि टेस्ट मतलब लिख के अपने आप को एग्जॉस्ट मत करो, बट मुझे अभी मैं आपको रीजन बताऊंगी कि ये क्यों था। क्योंकि ये जो मुझे पेपर टाइम पे कंप्लीट नहीं हो रहा था, और चीजें और भी ज्यादा इश्यूज थे कि नहीं आ रहा है, बहुत सारी चीजें थी। मैम तो उस समय सारी चीजें ऑब्जर्व कर ही रही थी। शी वॉज दी क्या कहते हैं प्राइम ऑब्जर्वर व्हाट आई वाज गोइंग थ्रू एट दैट टाइम। तो वो सारी चीजें थी। तो यहाँ
पे मैंने कंटिन्यू किया था 4th स्टेज में जाके मतलब एग्जाम वगैरह देना। और एक चीज, पूरे यूपीएससी जर्नी में सबसे ज्यादा एग्जॉस्शन वाला जो टाइम होता है वो होता है एक्चुअल जीएस 1, 2 और 3, 4 एग्जाम पूरे यूपीएससी जर्नी में। मतलब आप 2 टेस्ट दे के आ रहे हो, आपको टेंशन है नेक्स्ट टेस्ट की, पर आपके अंदर एफिशिएंसी, वो इतनी हिम्मत नहीं बची, आप बहुत ज्यादा थके हो, प्लस हमें घर में रहने की आदत है, जो जब हम बाहर जाते हैं तो हमें ट्रैफिक वगैरह, सर दर्द, देयर इज अ लॉट ऑफ थिंग, एंड उसी में आपकी तबीयत ठीक नहीं है, आपसे लिखा नहीं जा रहा है, हाथ वाथ दर्द हो रहा है, बट स्टिल आपको पढ़ना है नेक्स्ट डे के लिए, फिर आपको नेक्स्ट डे में भी करना है, आपका पूरा कवर भी रिवाइज भी नहीं हो पाएगा उतने मोमेंट पे। तो ये जो टाइम पीरियड होता है ना 2 दिन का, आई थिंक 14-15 जो था, वो मुझे लगता है कि पूरे यूपीएससी जर्नी में जो मुझे आई हैव बीन इन दिस फेज इन फ्रॉम 2 years, उसमें सबसे ज्यादा एग्जॉस्टिंग पॉइंट ये था। तो बी प्रिपेयर्ड फॉर इट, और ये मेंस में हो जाता है। अब इसका पहला रीजन ये हो सकता है कि आई वॉज गोइंग थ्रू दैट सिमिलर काइंड ऑफ एग्जॉशन सिंस लॉन्ग, इस वजह से वो एग्जॉशन इस मोमेंट पे मुझे ज्यादा फील हुई। और शायद और भी रीजन हो सकते हैं, टेंशन लेना, प्रेशर लेना, देयर इज अ लॉट ऑफ रीजंस, बट होता है वो, ठीक है। तो ये साइंटिफिकली आपको डिसाइड करना होगा कि कौन से पीरियड में आपको किस तरीके से स्टेज वाइज चलना है। अब यहाँ पे एडवाइस है कि एनालाइज योरसेल्फ हो गया, प्लान साइंटिफिकली, थर्ड है अडियर टू टारगेट एज मच एज यू कैन। अब जैसे यहाँ पे मेरा ऑप्शन का मैंने 12 टेस्ट का टारगेट रखा था, जो मैंने ऑप्शन की टेस्ट सीरीज ली थी, वहां पे 12 अवेलेबल थे, मैंने सोचा था 12 लिखूंगी, बट अगेन टाइम नहीं मिला, बट एटलीस्ट मैंने देखा कि मैं 7 तक एटलीस्ट कर पाई थी। एसए के लिए मैंने सोचा था कि 20 करना है, और लास्ट तक मैंने 20 किया। लास्ट एग्जाम के एसए के एक दिन पहले तक मेरा 18 था, उस दिन बैठ के मैंने 2 एसए लिखे और 20 किया। फिर जीएस के लिए मैंने लिमिट नहीं रखा था, एफएलटी की बात कर रहे, सेक्शनल नहीं, एफएलटी का था, लिमिट नहीं रखा था कि जितना दे पाएंगे दे देंगे, उसमें मैंने 20 किया था। तो ये चीज है कि टारगेट एटलीस्ट रखो, डिसेंट अमाउंट ऑफ टारगेट कि आप कर पाओ। फोर्थ, डोंट ओवर बर्डन योरसेल्फ। ये चीज मेरे साथ भी हुई थी, एंड आई फील कि ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के साथ होती है कि हम अपने आप से बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन कर लेते हैं, एंड वी फील लाइक कि यार ये तो हो जाएगा, और नहीं होता है तो फिर हम डिमोटिवेट होके बैठ जाते हैं। ये नहीं करना है, ओवर बर्डन खुद को नहीं करना है। जस्ट रियलाइज कि आप इंसान हो और आपके पास लिमिटेड कैपेसिटी, आपको उस लिमिटेड कैपेसिटी को बेटर तरीके से एफिशिएंटली यूटिलाइज करना है। उसको कैसे कर सकते हो उस तरफ ध्यान लगाओ, ओवर बर्डन करके खराब नहीं करना है। अब ये मेरी आदत रही है कि जब मेरा टारगेट पूरा नहीं होता है, इवन शुरू से ही, सिंस स्टार्टेड माय प्रिपरेशन, जब भी मेरा टारगेट पूरा नहीं होता एंड आई फील कि अब तो नहीं हो पाएगा, मैं ईयरफोन लगाती हूँ, मैं डांस करती हूँ और मैं सो जाती हूँ। तो दिस इज माई मैकेनिज्म टू ओवरकम माई बर्डन एंड ओवरकम माई प्रेशर। तो इस तरीके से कि मतलब नहीं हो रहा है तो ठीक है, छोड़ो यार, अब चलो जो हॉबी है उसको फॉलो करके और सो जाओ, फिर नेक्स्ट डे से नई शुरुआत करेंगे। एंड ट्रस्ट मी, मतलब टारगेट तो मैक्सिमम टाइम आउट ऑफ 100 में 95 टाइम्स टारगेट पूरे नहीं होते हैं। 5 टाइम्स ही होता है कि जब आपके टारगेट पूरे होते हैं, आप बहुत खुशी से कह रहे वाह वाह आज का तो पूरा हो गया, चलो नेक्स्ट डे से अच्छी शुरुआत करते हैं। सो टारगेट्स पूरे नहीं होंगे, आपको उसके लिए ओवरबर्डन नहीं होना है, बट आप एटलीस्ट कोशिश कर सकते हो कि आपने जो सोचा है उसको कर पाए, और वो तभी हो पाएगा जब आपने साइंटिफिकली चीजों को प्लान किया है, ठीक है। अब जैसे अगर मैंने फर्स्ट स्टेज पे ही सोचा होता कि मैं पूरा जो 3 आवर टाइम टेस्ट है वो कर लूं, तो वो नहीं हो पाता, और नहीं होता तो फिर लगता कि अभी 3 मंथ्स में मेरा मेंस है और ये मैं इतना गंदा आंसर लिख रही हूँ, कैसे होगा, और करके फिर मैं अपने आप को प्रेशराइज कर लेती। इवन फॉर द इंटरव्यू ऑल्सो, अगर मैं अभी स्टार्टिंग में मेरी उतनी एफिशिएंसी नहीं है आंसर डिलीवरी में, और मुझे अभी पता है कि मेरे पास 1 मंथ है, ऑलमोस्ट 1.5 मंथ है, अगर मैं अभी अपने आप को ओवर बर्डन कर लूं कि ये मेरे से नहीं हो पाएगा, तो फिर कैसे होगा। सीखने के लिए मुझे फ्री माइंड रखना पड़ेगा ना। उसके लिए तरीका है कि आप फेज वाइज चलो, स्टेजेस में डिवाइड करो, ठीक है, इस स्टेज में मुझे ये कवर करना है, इसमें ये करना है, इसमें ये करना है, ठीक है। इसके बाद से 5th है गो स्लो बट कंसिस्टेंट। अगेन गो स्लो, ये मेरी एक लाइन है जो मैं अपने स्टूडेंट्स, अभी क्योंकि मैं ऑप्शनल पढ़ा रही थी बच्चों को, तो वहां पे मैंने बोला और यहाँ भी बोलूंगी कि यूपीएससी मुश्किल है तभी आसान है, ठीक है। ये लाइन मुझे मेरी फेवरेट है। मुश्किल इसलिए है क्योंकि यहाँ पे जैसी लाइफ डिमांड करती है ये कि 8 to 9 आवर्स हमें डेली पढ़ना है, वो मुश्किल है, वो सब नहीं कर पाते। यहाँ पे यूपीएससी का जो सिलेबस है वो इसलिए टफ नहीं है क्योंकि वो समझ नहीं आता, सबको समझ आता है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, आप एक बार पढ़ो, वीडियो देखो, सब समझ आता है, लेकिन फिर भी सबका क्यों नहीं हो पाता, बिकॉज कहीं ना कहीं कमी रह जाती है विद रिस्पेक्ट टू कंसिस्टेंसी, विद रिस्पेक्ट टू प्रॉपर साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ पे अगर जिसने इस चीज को मेंटेन किया है
वो ही आगे बढ़ पाता है। अब ये भी नहीं कहेंगे, ये गलत हो जाएगा कि बाकियों ने, मतलब ऐसे बहुत सारे, ट्रस्ट मी, एक तो अनसर्टेनिटी है इस एग्जाम में। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, इंक्लूडिंग अभिषेक, हु वाज माय वेरी गुड फ्रेंड। मैंने देखा इवन वन ऑफ माय वेरी गुड फ्रेंड, ये लोग मेरे से ज्यादा नॉलेजेबल हैं, मेरे से ज्यादा एक्सपीरियंस भी हैं, स्टिल उनका नहीं हुआ। तो आई कांट से कि मतलब कि जिनका नहीं हो रहा है वो हार्ड वर्किंग नहीं है, बट एटलीस्ट एक जो मिनिमम रिक्वायरमेंट होती है वो अगर आप नहीं कर रहे हो तो फिर आप अपने आप को उस जगह पे नहीं देख पाओगे। मिनिमम रिक्वायरमेंट है कंसिस्टेंसी की। मुझे याद है मेंस के पहले तक, मेंस के बाद से मेरी कंसिस्टेंसी ब्रेक हुई थी फॉर 2 months, बट उसके पहले सिंस आई स्टार्टेड माई प्रिपरेशन, जो 2 years का फेज था, उस फेज में मुझे नहीं याद कि मैंने पढ़ाई के अलावा कुछ और भी किया या नहीं। आई वॉज अ काइंड ऑफ मल्टी टास्किंग गर्ल, जो गेम्स भी करेगी, जो खेलेगी, मतलब डांस भी करना है, जो गेम्स भी करेगी, इधर उधर, मतलब जो आ जाए सामने करना है। लेकिन उस 2 years के फेज में मैंने अपने आप को बहुत ज्यादा कंसोलिडेट करके और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस किया। मतलब मेरे को ऐसा, और लोग कहते हैं कि 8 hours पढ़ना है, 12 hours पढ़ना है। आई डोंट थिंक कि मैंने कभी आवर्स कैलकुलेट किए थे कि आज मेरे 15 घंटे हो गए, आज मेरे 8 घंटे हो गए, ऐसा नहीं। मैं उठती थी, अपना डेली रूटीन करती थी, फिर अपना पढ़ाई कर रही हूँ, मेरा हो गया, फिर मैं सो गई। फिर से हाँ, वो प्रेशर होता था कि आज ये टारगेट नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, ये नहीं हुआ, लेकिन मेरी जिंदगी उसी के अराउंड घूम रही थी आसपास। इवन मेंस के टाइम पे तो ऐसा हो गया था कि मेरे घर में कोई कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, मुझे पता नहीं चल रहा है। फिर थोड़ी देर बाद जब मैं वहां जाके देख रही हूँ कि अरे ये तो हो गया ठीक। तो इस तरीके का आइसोलेशन मेंटेन करना होता है आपको। अब इस आइसोलेशन को आपको, मतलब ये आपकी लाइफ का पार्ट है और वो करना पड़ेगा। तो आई थिंक दिस इज द ऑनेस्ट एडवाइस फ्रॉम माई साइड। एनीथिंग एल्स यू वांट टू आस्क? और मेंटल हेल्थ, एक चीज और मैं डिस्कस करना चाहूंगी जो मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है, कि मेंटल हेल्थ टूल करेगा, पूरे फेज में करेगा, फ्रॉम द डे यू स्टार्टेड दिस प्रिपरेशन टिल द डेट यू हैव सीन योर नेम इन दी होली बुक, तब तक मेंटल हेल्थ का इशू रहेगा। आपको बस वहां पे फोकस करना है कि आप अपने आप को मैनेज कैसे कर पाओ। मैंने ये चीज सीख ली बेटर तरीके से मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में जब सब मेरी तरह ही आपका भी होगा कि फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर करना है और आप लग जाते हो एकदम पूरी तरीके से। मेरे फर्स्ट अटेम्प्ट में मुझे याद है कि 3 months का, मतलब अभी मुझे बताने में ज्यादा प्राउड फील होगा, बट एट दैट टाइम इट डिडंट वर्क वेल। फॉर 3 months मैं अपने घर के बाहर नहीं निकली थी, और इन इन एक्चुअल सेंस मैंने नहीं निकला था, बाउंड्री के बाहर तो मैं निकली ही नहीं थी उस टाइम पे फर्स्ट अटेम्प्ट में, क्योंकि मुझे पढ़ना था। जब भी ये बुक खोलो पढ़ाई शुरू कर दो, लेकिन ऐसा नहीं करना होता है। अपने हेल्थ को ध्यान रखना है, मेंटल हेल्थ को ध्यान रखना है। देयर वाज अ टाइम 5th June को मेरा एग्जाम था, फर्स्ट अटेम्प्ट की बात कर रहे हैं, एंड ऑन द 1st June आई वॉज नॉट एबल टू फोकस ऑन स्टडीज एंड आई डोंट वांट टू टच बुक, एनी बुक। मतलब मुझे बुक छूने का ही मन नहीं है, मुझे कुछ करने का मन नहीं है, मैं एकदम इरिटेट हो चुकी हूँ हर चीज से। तो वो एग्जॉशन पॉइंट आपका नहीं आना चाहिए। वो जो कहते हैं ना कि एफिशिएंसी आपकी रीडिंग के साथ बढ़ती है, लेकिन वही एफिशिएंसी एक थ्रेशोल्ड तक पहुंचने के बाद से गिरने भी लगती है। तो आपको ये इंश्योर करना है कि फाइनल एग्जाम के दिन आपकी वो एफिशिएंसी पीक पे हो, ना कि गिरने डाउनफॉल के फेज पे हो। मेरी डाउनफॉल के फेज पे हो गई थी फर्स्ट अटेम्प्ट के टाइम पे। वो चीज मैंने इस बार देखी, और उस चीज को ध्यान में रखते हुए मैंने अपनी पढ़ाई का ध्यान रखा कि मुझे अपने आप को ओवर बर्डन नहीं करना है, मुझे अपने आप से ओवर एक्सपेक्टेशन नहीं करना है, और मुझे बहुत ज्यादा भी नहीं पढ़ना है कि जिससे लास्ट में जाके मेरे पास एनर्जी ना बचे और मैं ना कर पाऊं। मेंस में शायद आई वुड से कि मेंस के टाइम पे मेरी एफिशिएंसी डिग्रेडिंग पोजीशन पे आ गई थी, क्योंकि मैंने शुरुआत में बहुत ज्यादा मेहनत कर दी थी। लेकिन उसके पीछे भी रीजन है, अगर ग्राफ के थ्रू आई विल एक्सप्लेन कि व्हाट वाज द रीजन व्हाई आई डिड दैट, तब आपको समझ में आएगा कि अगर आपको उससे बचना है तो आपको पहले क्या करना पड़ेगा। सो दिस वाज फ्रॉम माय साइड। एनीथिंग यू वांट टू आस्क? All right. That was really a fruitful session. And now, see, many times what we feel that no, ये वाला जो chart है, ठीक है, this chart, like no, sometimes we feel like no, since if anyone clears कि ये आज बनाया गया होगा, या like no, just to make you people कि how much she has studied, she has made it just now, okay. Let me like no give you a glimpse here, like no that is why you would understand that why I keep on asking you that update me your status, okay. Let us see the honesty of the Princey here. Just wait a minute, let me take you on a screen, and Princey can confirm that this is her chat page. All of you can see this page. See, like no, the number of tests from like no
इससे पहले she was on the another, like she was using the another profile. Will make you there as well. But just go through the number of tests. Okay, so she has written first essay. This is not her first essay. See, here is the updation. This is my work in progress. Okay, so this kind of the commitment, like अगर आपने 17th अगस्त से भी प्रिपरेशन स्टार्ट किया, डजेंट मैटर आपने कब से प्रिपरेशन स्टार्ट किया, बट दैट डे you finally decide कि now this is the time I am religiously sitting for my studies, I'll make it count. Okay, so this is how, like, and she kept on updating me. Okay, it can be weekly, it can be monthly, it can be like, no, any way you are comfortable. Okay, then see, next essay. Okay, just like, no, have a look. GS1, GS, both tests on one day might be. Okay, then again one essay. Like, this is just I'm making you see कि कैसे आपको कितने टेस्ट लिखने हैं, ठीक है. Then have a look. Test 1. Okay. Then again test. और थोड़ा सा आप डेट्स को भी आइडिया में रखो, like 30th अगस्त, then September 4 को again a test, September 5 again, then September 7 one more test, September 9 2 tests, GS2 FLT, and then this was one of the test quiz test. Okay, then here is the one test more, GS4 FLT, GS3 FLT. Okay, then GS September 10 again, have a look. Okay, then GS3 FLT. Like, this is the number of the test you would be writing if you finally decide so. Alright, then I have given best of my abilities, and then no regrets of wasting any time. Okay, that's all. Anyway, just have a look upon this image. Okay, this is the similar image which she has added in that file. This is the same one. Yeah, this is the same one. I feel so, right? And then see, September 17th. Okay. So this was the day, right? Princey, this was the day of the exam, right? So see, all GS question attempted. Okay, and this was something which me and Princey, like, no, I used to tell her every day, every morning, every evening, whenever we were on the discussions, that डजेंट मैटर क्वालिटी खराब भी हो जाए, क्योंकि क्वालिटी खराब होगी हॉल में, वो किसी के हाथ में नहीं है. वो उस टाइम सिचुएशन ही ऐसी होती है कि अगर आप क्वालिटी को देखने लगे तो क्वांटिटी चली जाएगी. ठीक है, तो आप किसी भी एक ही चीज को अच्छे से संभाल सकते हो, एंड दैट इज द क्वांटिटी फर्स्ट, आई वुड से. ठीक है, ऑल क्वेश्चंस अटेम्प्टेड. अगर इतना भी हो गया तो वी हैव अ सेटिस्फेक्शन कि चलो अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो आपने नहीं किया. ठीक है, क्वालिटी कॉम्प्रोमाइज वो डेफिनेटली प्रिंसी, लाइक, नो, वो मैं आपको पहले भी आई यूज टू टेल यू कि आप चाहे अभी कितना अच्छा लिख लो, कितना खराब लिख लो, हॉल में क्वालिटी तो जाती है. क्वांटिटी अगर नहीं हुई तो, लाइक, नो, दैट इज अगेन, लाइक, लेट मी मेक यू ऑन द अनदर स्क्रीन एज वेल. Am I audible? Yeah, Princey, you are audible. मैम आई वॉन्ट टू एड हियर दैट क्वालिटी एंड क्वांटिटी दोनों ही इंपॉर्टेंट है. व्हाट हैपेंस इज, मैंने क्वेश्चंस कैसे किए थे कि स्टार्टिंग में मैं पहले 15 मार्कर्स के 5 क्वेश्चंस करती थी एंड 10 मार्कर के 5 क्वेश्चंस करती थी सबसे पहले. तो इससे होता क्या था कि जो एग्जामिनर है वो पहले देखेगा कि जब 10 मार्कर स्टार्ट करेंगे तो देखेंगे कि 5 क्वेश्चंस मैंने बहुत अच्छे लिखे हैं, या फिर जब 15 मार्कर्स का होगा तो उनको दिखेगा कि ये क्वेश्चन मैंने बहुत अच्छे लिखे. वहां पे मेरी क्वालिटी के साथ साथ क्वांटिटी भी होता था, मैं पूरे पेजेस फिल करती थी. तो उससे क्या होगा कि उनको पता चल जाएगा कि द स्टूडेंट हैव मतलब हैड कंटेंट, कि वो लिख सकते हैं. फिर लास्ट में वो क्वांटिटी की वजह से, क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा कम हो जाता है, तो फिर वहां पे राइटिंग कॉम्प्रोमाइज हो जाती है एंड देन जो भी याद आया वो लिख दिया. तो शुरुआत में क्वालिटी पे फोकस होता था, स्टार्टिंग में एंड तक जाते जाते टाइम की कमी की वजह से वो कंस्ट्रेन होता जाता है. Okay, now, Quincy, do you have your sheets as well with you, or shall I share? You can share. I am using from my phone, so.
Okay, just wait a minute. Let me take you through. Okay, can you all see the sheet? Quincy, this is your sheet, right? Yes, ma'am. All right. Okay. So this is one of the geography tests which she appeared, and might be ये second या first test था. Okay. This was the first or the second test. Okay. Now see, like, no, some of the mistakes. So Quincy, can you please tell me, like, whatever mistakes you used to commit in the test? So do you think you have worked upon that as well? Like, because I was not there in the hall with you. Okay, I was not there in the hall with you, right? So can you please tell me कि अब आपको वो mistakes तो याद होंगी definitely जो आप commit करते थे पहले. You used to commit a lot many mistakes, a lot many. यस मैम, बेसिकली प्रेजेंटेशन पार्ट पे होता था, तो वो सारी चीजें बॉक्स में बनाना एंड मतलब यही जो भी आपने लिखा है इन सब चीजों को फोकस तो किया था. And Quincy, what about the examples? Like, have you added as many example possible in the exam? मैम आई वुड से दैट बाय द टाइम ऑफ एंड ऑफ टेस्ट सीरीज, इवन जो लास्ट में मैं लिख रही थी जिस लेवल का, उससे बेटर तो नहीं था एग्जाम में. उससे मतलब आई वुड से कि उससे थोड़ा कम ही लेवल का मैंने आंसर लिखा है. तो एग्जाम्पल्स वगैरह मैंने कोट तो किए थे, बट एटलीस्ट मैं शायद सेटिस्फाइड नहीं थी अपनी परफॉर्मेंस से, क्योंकि मैं टेस्ट में ज्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही थी. Okay. We'll see two more questions lined up for you. The very first question, what do you think, like, no, what is the relevance of writing so many tests? Like, why we should write so many tests? Or is it कि हम अगर suppose, like, no, अगर हम 8-10 tests भी लिख ले, so why there is need to write so many tests? Like, why I used to tell you कि please write as many possible. So what is the reason behind? The major reason is to reach the minimum threshold. That जो ग्राफ है जो मैंने ऐड किया है उसमें एक मिनिमम थ्रेशोल्ड है कि आप जब एक डिसेंट अमाउंट की आंसर राइटिंग कर लेते हैं तो आपका दिमाग ट्रेन हो जाता है एक अच्छे आंसर राइटिंग के लिए. फॉर मी, मेरे लिए रीजन ये था, और ये मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए होता है, कि अगर आपने वो मिनिमम थ्रेशोल्ड पहले कवर नहीं किया है फरवरी तक, तो जब आप 5 मंथ्स का गैप होगा, 4-5 मंथ्स का ड्यूरिंग प्रीलिम्स प्रिपरेशन, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, तो इस टाइम पे जब आप फिर से लिखने जाओगे आंसर, तो आपसे नहीं लिखा जाएगा उस मोमेंट पे. उस मोमेंट पे आपको बहुत ज्यादा इश्यूज होंगे, और वहां पे क्या होता है कि आप फिर से जीरो से स्टार्ट कर रहे हो, तो बिकॉज आपने मिनिमम थ्रेशोल्ड पे नहीं पहुंचे और उस गैप की वजह से आप जीरो पे पहुंच गए हो, तो वहां पे आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ती है. सो आप अगर मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल पे पहुंच गए हो पहले, और फिर आप मेंस की तैयारी करने जा रहे हो, तो आई थिंक 15 to 20 टेस्ट इज इनफ, इंक्लूडिंग सेक्शनल. But if you are starting from zero like me, then you have to take extra effort. You have to go as much as you can write. Like आपको लिखना पड़ेगा. That happened with me, क्योंकि मुझे ये चीज रियलाइज थी. मेरे अंदर ये चीज अच्छी बात है कि मैं अपनी कमियां देख लेती हूँ. मुझे पता है कि यहाँ पे मुझे काम करना है, इस वजह से मैं वहां पे काम कर सकती हूँ. हालांकि कितना काम करती हूँ कितना नहीं, दैट अदर थिंग, बट स्टिल कि वहां पे मुझे ये चीज एहसास हो गई थी कि मुझे जीरो से स्टार्ट करना है. आंसर राइटिंग मैं भूल चुकी हूँ, मुझे बिल्कुल याद नहीं है, तो इस वजह से मुझे फिर से करना पड़ा था और बहुत ज्यादा लिखना पड़ा. सो यू नीड टू रियलाइज कि वेयर यू आर लाइंग, यू आर बिलो मिनिमम थ्रेशोल्ड लेवल और यू आर अबव दैट. इफ यू आर अबव दैट देन ओके, आप 15 से 20 लिखो. लेकिन मेरे लिए नहीं था, तो मैंने 25 सेक्शनल लिखे प्लस 18 FLT लिखी, क्योंकि मुझे पता था कि मुझे करना पड़ेगा. दैट इज द ओनली वे. All right. Okay. So one more thing which I would like to highlight here. See, first of all, like, no, if we talk about the geography, we know what is the significance of the diagrams, basically. Okay. And considering Quincy, she was really good with the diagrams. Like, no, she left not a single space to make the diagrams and everything. Okay. Like, for example, if we discuss about this. Okay. So here is a diagram. Like, no, जहाँ पे possibility है उसको आपको छोड़ना नहीं है. Like, for example, एक यहाँ पे फिर वापस से एक ऐड किया गया. मैम आई थिंक आपको काउट 16 का पेपर दिखाना चाहिए, उसमें मैंने बहुत डायग्राम यूज किए थे. Okay, like I'm just like looking at the places because some question papers were checked over the call as well. No, वो काफी आपके पेपर कॉल पे भी चेक हुए थे.
So that is I'm checking कि कहीं पे right marking हो, so that no I can make them see at least कि how the review process used to go on, how the things were going. Okay, so for example like no here is a diagram once again. You need not to think कि diagram मतलब like no useless हो सकता है या इसका कोई significance नहीं होगा अगर मैंने उसे बना दिया तो like no इतना मत सोचो. जहां पे भी थोड़ा सा भी like no हाँ for example जैसे अब ये क्वेश्चन था ठीक है like let us see. The question says कि explain the reason for wide variety of the physiographic division of India and its significance. Okay, like no, all students would remember it. Those who used to write this geography, SOUT and all, सभी को ये क्वेश्चन याद होगा, ठीक है? अब से इस क्वेश्चन में एक मिस्टेक आएगी, जैसे रीजन वाला पार्ट है या हाँ सिग्निफिकेंस वाले पार्ट में नो, जैसे काफी चीजें शी मिस्ड इट. Okay, like no, this was such a plain answer. Like significance वाला part and see, like no, she written only 1 point. Okay, and that too like no elaborate ज्यादा है and points कम है, ठीक है? So this is how like no you have to prepare so many points. And again अब ये ऐसा कुछ नहीं जो प्रिंसी को या किसी को नहीं पता हो, मतलब ये ऐसा कुछ भी नहीं है, ये पता होगा. लेकिन द थिंग इज जब आपको पता होना चाहिए जिस टेस्ट में आपको चीजें लिखनी और तब आप नहीं लिखते तो फिर आपकी नॉलेज लाइक नो इट इज यूजलेस. ओके, नाउ फॉर एग्जांपल लाइक अब हम थोड़ा आगे चलते हैं. तो जैसे आंसर्स में प्रिंसी यूज टू डू दिस मिस्टेक एज वेल. करंट अफेयर का बहुत लाइक नो बहुत इशू था. देयर वर सो मेनी फ्रंट्स जहाँ पे एग्जाम्पल्स करंट अफेयर्स या लाइक नो इन शॉर्ट वी कॉल इट वैल्यू एडिशन, तो वो भी बहुत इजी. ये इनिशियल टेस्ट है ना, इनिशियल टेस्ट. यस प्रिंसी, दिस वाज द इनिशियल टेस्ट ओनली, दैट इज व्हाई. तभी मैंने एक बार लेटेस्ट वाला नहीं लिया ना. लाइक यू शुड सी कि कैसे रिव्यू प्रोसेस होता है या कैसे लाइक नो चीजें थोड़ा थोड़ा समय लग के बदलती है. ऐसा नहीं होता है ना कि आप डे 1 से ही बहुत ज्यादा ब्रिलियंट आंसर्स लिखने लग जाएंगे अनटिल अनलेस आपने पहले बहुत अच्छे से पढ़ा हो. ओके, फॉर एग्जाम्पल नाउ अगेन अ मैप हियर. अब ये मैप जो है ये भी बहुत प्रैक्टिस मांगते हैं. मतलब लाइक यू डेफिनेटली कैन नॉट ड्रॉ दीज मैप इन लाइक नो कुछ सेकंड्स में नहीं बन सकता है. आपको कई बार तो 2-3 मिनट लग जाते हैं, बट ये सेकंड्स में भी बनने लग जाते हैं जब आप परफेक्ट हो जाते हैं. बट अगेन द थिंग इज अब आपने खाली मैप बना के छोड़ दिया सपोज, देन व्हाट इज द यूज ऑफ मैप जब तक आप लेबलिंग ना करो. तो यू कैन सी एक प्रॉपर लाइक नो प्रॉपर भी क्या और डेंस और लाइक नो डीप कॉम्प्रिहेंसिव वट एवर वी कॉल इट, इसको आप कोई भी एडजेक्टिव दो. जस्ट हैव अ लुक एट द लाइक नो लेबलिंग, कितनी डेंस लेबलिंग की गई है. सोनोगन, ठीक है, शी हैज नॉट लेफ्ट अ सिंगल डेजर्ट, ऑलमोस्ट डेजर्ट्स आर कवर्ड इन द डायग्राम. अब हैव अ लुक ओवर द क्वेश्चन वर्ल्ड्स डेजर्ट रीजन. और अब आपने ये डायग्राम नहीं बनाया, देन व्हाट इज द यूज ऑफ रीडिंग द ज्योग्राफी. आपने इतने महीनों से, दिनों से, सालों से ज्योग्राफी पढ़ी होगी, बट अब आप ये डायग्राम ना बनाए, देन व्हाट इज द यूज ऑफ द ज्योग्राफी या व्हाट इज द यूज ऑफ दिस क्वेश्चन. में फिर तो बहुत बेसिक प्लेन 6th 7th 8th का क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है. देन फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा हम और आगे चलते हैं. अगेन अब ये जो करंट अफेयर का वैल्यू एडिशन था ये स्टार्टिंग के टेस्ट है, तो शी मिस्ड अ लॉट अपॉन द वैल्यू एडिशन वाला पार्ट. ओके, एंड वैल्यू एडिशन मींस जो आपका फॉर एग्जांपल रेड प्लस है, यूएनसीसीडी है, मियावाकी इज अ पीवाईक्यू यूपीएससी प्रीलिम्स बोन चैलेंज हो गया. तो ये सभी चीजें जो है ये आपको करनी होगी, ठीक है. दोज हु आर लाइक नो स्ट्रगलिंग विद ऑल दोज थिंग्स या ऑल दोज पीपल हु आर स्ट्रगलिंग विद द करंट अफेयर्स, दैट how to assimilate the current affairs. Okay, and now I will make you see one more thing. See, first of all, okay, this is the best way. And one more thing which Quincy used to do is this. She used to identify the keywords, and which I always used to tell you people कि जब आप क्वेश्चन पढ़ते हो पहले क्वेश्चन की मेन लाइंस को अंडरलाइन, ठीक है. सीधा जंप कर जाते हो क्वेश्चन में, आप क्वेश्चन लिखने लग जाते हो, आपको पता ही नहीं है पूछा क्या है क्वेश्चन में, या आपको पता ही नहीं है कि क्वेश्चन में लिखना क्या है. बस आपको ये पता है कि 7 मिनट या 10 मिनट है मुझे लिखना है. वो कोई मतलब नहीं उस चीज का. आप वो 7-10 मिनट भी बर्बाद कर रहे हो. यू आर वेस्टिंग 2 पेजेस अगेन, ठीक है. पेजेस ये कीवर्ड वाला सेक्शन लिखने से या अंडरलाइन लाइक नो शी यूज्ड टू अंडरलाइन एज वेल. आई फील इन ऑलमोस्ट क्वेश्चंस अंडरलाइनिंग होती थी, एंड दैट इज वन थिंग व्हिच आई आल्सो लाइक नो ट्राइड टू इन्फ्यूज इन यू पीपल कि अंडरलाइनिंग इज एन इंपॉर्टेंट पार्ट. देन मैपिंग जो है एक्चुअली दिस इज द परफेक्ट वे. आप इतने सेक्शन में इंट्रो दो और यहां पे उसके जस्ट अलॉन्ग साइड एडजेसेंट में आप उसकी एक ग्राफ, मैप, फ्लो चार्ट, वट एवर पॉसिबल, लाइक जो भी उसकी डिमांड है पर्टिकुलर. ओके, नाउ लेट अस सी. जैसे एक ये मैप और ऐड किया गया. अगेन लाइक नो यू कैन सी एक भी क्वेश्चन में मैपिंग मिस नहीं है, एंड दिस वाज नॉट अ ज्योग्राफी.
ये हिस्ट्री पॉलिटिक्स अभी में प्रिंसी के साथ था, लाइक नो अभी मैं हिस्ट्री के भी डायग्राम्स दिखाती हूँ आपको, ठीक है। पहले थोड़ा सा लाइक नो जस्ट इसको आप थोड़ा सा एसिमुलेट करो, ठीक है, कि इतने डेंस रिव्यूज मिलने के बाद आंसर्स एक समय के बाद आपके निखर के आते हैं। तो ये ऐसा पहला दिन नहीं होगा कि आपने पहले दिन 4 आंसर लिखे हो वो बहुत अच्छे हैं। दोनों का ही प्रोसेस है, आपका भी प्रोसेस है, मेरा भी एक प्रोसेस है। ओके, नाउ लेट अस कम टू द हिस्ट्री। ओके, अब देखो हिस्ट्री में कोई कितने ही डायग्राम बना लेगा, ठीक है, लेकिन लेट अस सी प्रिंसी नाउ। अब पहले तो अब प्रिंसी वो यही टेस्ट है क्या जिसमें आपने जो इंडस वैली में वो थे बियर्डेड प्रीस्ट उन सबको भी ड्रॉ किया था? मैम आई कांट रिमेम्बर एग्जैक्टली बट शायद हो। ओके, वेट आई बिलीव वो यही टेस्ट होगा। सी जैसे पॉटरी है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, तो अभी आप देखो पॉटरी का भी ना लाइक एक डायग्राम, और यहाँ पे वेरिथिन है या टू स्केप है, ये वो स्ट्रेनिंग लिकर वाला कौन सा होता था? परफोरेटेड पॉटरी। ओके, अच्छा कोई बता सकता है सिरे पर्दू टेक्निक क्या थी? कैन एनीवन जस्ट लाइक एक आइडिया दे सकता है? सिरे पर्दू, CIREPERDU, सिरे पर्दू टेक्निक, व्हाट इट इज? Sire Pardue technique was the another name of lost wax technique. All right. Okay. Then see, like no burnt bricks करके जो great बात का construction है, again she tried to emphasize upon a diagram. Okay. प्रीस्ट वगैरह सारी थे, इसी के आंसर में थे। All right. Okay. Let us see. See. Questions only. Yeah, Princy. I think the drawings you are looking for was that in that questions only in the upper part. Okay, all right. It means I missed upon, right? गया ऊपर ना। अब बट ओके, मतलब जो मैं समझाना चाहती हूँ वो सभी को समझ आ जाना चाहिए, ठीक है। ऑल राइट, ये क्वेश्चन कितनों को याद है? यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम ब्रिटिश पॉलिसी वाला कितनों को याद है? मतलब जिसने लिखा है उनको याद होना चाहिए एटलीस्ट, लाइक नॉट जस्ट स्पीक योर नेम। ये क्वेश्चन किस किस को याद है? और ये हिस्ट्री टेस्ट का क्वेश्चन है लेवल 1 का। हाउ मेनी ऑफ यू रिमेंबर? Ma'am, I do. Charisma this side. Okay, Parisma. Then Kshitij, Prachi, do you people remember? Yes, ma'am, I remember. Yes. Ma'am. And then I believe Shreya is also there. Shreya, do you? Yes, ma'am. Okay, see, अब हम इस क्वेश्चन को देखते हैं थोड़ा सा। जो आपने लिखा होगा वो तो आपको याद होगा ही, ठीक है। अब प्रिंसी वाला भी आंसर देखते हैं, एंड प्रिंसी ने बहुत मिस्टेक्स की थी इस आंसर में। सी, अभी देखते हैं, देखो, ब्रिटिशर टुक सम इनिशिएटिव रिगार्डिंग द एजुकेशनल सिस्टम टू फुलफिल देयर सेल्फिश एम ऑफ द कॉलोनियल इंपीरियलिज्म, ठीक है, फाइन। अब इस इंट्रोडक्शन में क्या क्या मिस्टेक्स है कोई आइडेंटिफाई कर सकता है? फॉर मी, एल्स आई विल आइडेंटिफाई। एनीवन, कोई भी मुझे मिस्टेक आइडेंटिफाई करके दे सकता है इसमें? ये इतना सा आपके सामने इंट्रोडक्शन है, दिस वन। नाउ आइडेंटिफाई द मिस्टेक इन दिस इंट्रोडक्शन, या फिर ये एकदम थम्स अप इंट्रोडक्शन है? टेल मी। मैम, थोड़ा सा इंट्रोडक्शन में न्यूट्रलिटी या कुछ डिफाइन करने की कोशिश करते हैं कि कब हुआ, क्या हुआ, व्हाट, व्हेन, वेयर। तो ये कंक्लूजन में लिख सकते थे। आई थिंक दैट वुड हैव बीन नाइसर, क्योंकि थोड़ा सा ओपिनियन शुरू में ही कर दिया तो वो इंट्रोडक्शन मतलब इतना बैलेंस नहीं लगता। आई थिंक इंट्रोडक्शन शुड बी मोर डेफिनेटिव परहैप्स, मतलब डिफाइनिंग नेचर होना चाहिए कि अगर ब्रिटिश पॉलिसीज इन एजुकेशन, तो कीवर्ड्स ब्रिटिश पॉलिसी और एजुकेशन सिस्टम हो गया। तो व्हाट वन पॉलिसीज, हु वाज द फर्स्ट वन टू इंट्रोड्यूस एजुकेशन सिस्टम, व्हेन डिड दे डू इट, कौन से एक्ट के थ्रू आई एजुकेशन पॉलिसीज, and like 1 lakh rupees was given, but yes, it was for their selfish interest. but थोड़ा सा इसको अगर facts के साथ लिखते तो I think it would have been quite nice. For example, जैसे अब ये जो selfish word है, ठीक है, actually ठीक है, we know एजेंडा तो यही था ना, ये आपको मुझे सबको पता है ये बात, बट कुछ बातें हम सीधी नहीं लिख सकते, लाइक तो ये वर्ड ही गलत है टोटली, ठीक है। बिकॉज लेट अस नॉट फॉरगेट कि उन लोगों ने बहुत काम भी किया। आज इतनी एजुकेशन है, आज इतना वेस्टर्नाइजेशन है, तो दैट इज बिकॉज ऑफ देम। लाइक डजंट मीन कि वो
इंटायर टीम है, बट लाइक नो लेट अस नॉट ब्रिंग द कंट्रोवर्सी हियर। तो ऐसे वर्ड्स आपको इंट्रोडक्शन में तो एटलीस्ट बिल्कुल नहीं डालने चाहिए। प्लस आप ऐसा कुछ इस्तेमाल कर सकते हैं लाइक नो डिप्लोमेसी, या उन्होंने खुद के इंटरेस्ट को लिया। अच्छा, प्लस हिस्ट्री कैन नॉट बी डन विदाउट द ईयर्स। ओके, so these are the things, but the best thing about Quincy is कि whatever were the reviews, like no reviews were totally harsh with her at least, like no I don't know why so, but Quincy since day one got the very harsh reviews, isn't it Quincy? Anything upon this? Ma'am, I am used to it. You are used to it. Okay, तो like no ऐसा बहुत कुछ था, but the thing was कि Quincy ने हर टेस्ट के साथ बहुत एलिवेशन किया था, बहुत ज्यादा, like no beyond expectation there was the elevation. ओके, तो लाइक नो द थिंग इज कि रिव्यूज जो आपको मिलते हैं ना थोड़ा सा देखो क्रिटिकल है ना, दैट इज व्हाई यू आर राइटिंग द आंसर्स, ठीक है। लाइक नो समटाइम्स आई हियर कि लाइक नो ये जो रिव्यूज होते हैं उससे हम थोड़ा एग्जॉस्ट हो जाते हैं, हम थक जाते हैं, तो फिर आप रिव्यू करवाई क्यों रहे हो? जस्ट टेल मी वन थिंग, जब आप अपने खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन सकते, जब आप अपने आंसर्स के खिलाफ कुछ गलत नहीं सुन, देन व्हाई यू पीपल आर गेटिंग द रिव्यूज? लाइक एम आई क्लियर? लाइक ऐसा कुछ ये गलत है? कुछ ऐसा होता है कि हमें आंसर्स का रिव्यू बस प्लस ही मिलना चाहिए? इज इट सो? नेवर, आई बिलीव। एंड Quincy was someone to at least like no since with many students I used to like no, but with Quincy it was something like always harsh. Okay, but the thing is like what we call no कि लास्ट में सब कुछ वर्थ इट होना चाहिए, ठीक है। तो अगर रिव्यूज आपको मिलते हैं ना तो थोड़ा उसको बैठ के एनालिसिस करना होता है। अब ये शीट आपको मिली सपोज, ठीक है, अब आपने बस उसको रिव्यू, सपोज कीजिए आपने रिव्यू भी नहीं पढ़ा, आपने उसको सीधा डंप कर दिया, तो दैट इज समथिंग कि सीधा लाइक नो एक मेंस के हॉली पीडीएफ में नाम ऐसे ही नहीं आता, लाइक नो लर्न फ्रॉम हर एज वेल। क्विंसी इज अगेन अ गुड एग्जांपल, लाइक आई यूज्ड टू से अभिषेक, क्विंसी, मानसी, जसलीन, ऑल दीज आर लाइक नो, क्योंकि इवन लाइक नो दैट अभिषेक तो आपके सबके सामने ही था, ठीक है। तो द थिंग इज कि सब कुछ एक दिन में नहीं होता है, ठीक है। आप लोगों ने पहले भी बहुत मेहनत की है, अब भी बहुत मेहनत की है, तो अगर सामने वाला आपको क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप थोड़ा उसके माइंडसेट को भी समझने की कोशिश करें। बिकॉज आप में अगर फॉर एग्जाम्पल आप किसी जगह जा रहे हो, ठीक है, आपने फॉर एग्जाम्पल कुछ भी लर्निंग के लिए आपने किसी चीज को ज्वाइन किया, तो अगर आपको हमेशा बस प्लस प्लस कहा जाएगा लाइक नो यू आर सुपर, फैंटास्टिक, फैंटाबुलस, दिस एंड दैट, इवन लाइक नो आई डोंट नो सो मेनी वर्ड्स इन इट, ठीक है। मार्वलस इज माय पेट वर्ड बिकॉज ऑफ दैट, बिकॉज लाइक नो आई बिलीव इन द क्रिटिसिज्म मोर, एंड क्रिटिसिज्म शुड बी कंस्ट्रक्टिव इनफ, जो सामने वाले के काम आए, ठीक है। अब आपने उन्हें बता दिया कि आपने ये गलती की, बट आप उन्हें वे सजेस्ट नहीं कर रहे या यू आर नॉट गिविंग एनी डायरेक्शन, तो अगेन लाइक नो, and Quincy for you I would suggest कि since like no you got a golden opportunity to sit in the interview, so like no interviews को भी आपको उतना ही serious लेना है जितना आपने मेंस की प्रिपरेशन, मेंस के रिव्यूज और सबको लिया था। ऑल राइट मैम, एक्चुअली इसमें एक साइकोलॉजिकल बायस होता है, तो जब भी कोई एफर्ट करने में कोई इंसान मेहनत करता है तो क्या होता है कि उसको अपने एफर्ट से लगाव हो जाता है या प्यार हो जाता है, मतलब ही काइंड्स ऑफ लाइक दैट एफर्ट। सो जैसे सपोज कोई पैरेट की ड्राइंग भी बना रहा है और एकदम बेकार बना रहा है, बट वो खुद ने बनाई है, वो एफर्ट लगा है, तो उससे मेहनत हो मतलब यू नो अटैचमेंट हो जाता है। तो दैट्स द बायस दैट अ स्टूडेंट हैज टू बी अवेयर ऑफ। But tell me one thing, like no that bias in long run will help you or not? Just tell me this, like no yes or no would help me here. Just tell me this. अवेयरनेस के लिए बोल रहा हूँ मैं, ये नहीं बोल रहा कि मतलब स्टूडेंट्स को अवेयर होना चाहिए, ये सब चीजें होती है एक्चुअली, बस। Exactly, like no, because see, and that also like no कि एक पैरेट अगर बना रहे हो फॉर एग्जांपल, तो वो भी एक एज क्राइटेरिया भी मैटर करते हैं, लाइक नो, क्योंकि यू नो कि यूपीएससी इज अ फेस, एंड दैट इज अगेन लाइक नो एक महीने, 2 महीने, 6 महीने, लाइक नो साल लग जाते हैं, और साल से तो सभी को पता ही होगा ना कितने अटेम्प्ट होते हैं। लास्ट अटेम्प्ट की बात करूं मैं, और लास्ट में भी आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द जनरल कैटेगरी अगेन हियर, राइट। तो वो भी अगेन एक बहुत लंबा फेज है। तो अगर आपको क्रिटिसिज्म फेस करने की भी एबिलिटी नहीं होगी, ठीक है, सभी में नहीं होती है, डेफिनेटली नहीं होती है, बट वो बिल्डअप करनी बहुत जरूरी है। मैम, आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन थिंग हियर। एक्चुअली ये क्रिटिसिज्म्स के लिए तो मैं यूज टू हूँ, इवन फॉर द इंटरव्यू मैं हूँ इस चीज के लिए रेडी, बट आई वुड लाइक टू हाईलाइट वन ऑफ योर क्वालिटी, दैट इज इमोशनल इंटेलिजेंस।
इनिशियली यू वर ऑन अ क्रिटिसिज्म मोड, वो हार्श होते थे, बट एज द टाइम ऑफ एग्जाम प्रोसीडिंग, जैसे जैसे हो रहा था, इवन इन द लास्ट 3 days, मैं जैसे भी आंसर लिख रही हूँ, यू आर सेइंग वेरी गुड, मार्वलस, आउटस्टैंडिंग. इट वाज लाइक कि हाँ, प्रेज करने के लिए कि बहुत इम्प्रूव हुआ है. एंड इट इज लाइक इन लास्ट डेज आपने बिल्कुल भी क्रिटिसाइज नहीं किया था, एंड वो पूरी तरीके से मोटिवेशन लाइन पे ही था. सो आई वुड से कि मतलब जो टीचर वैसा ही होना चाहिए कि इनिशियली आपको क्रिटिसाइज करके आपको सही ट्रैक पे लाए, बट अगर एग्जाम है तो वहां पे अननेसेसरली क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा है ताकि आपका मोटिवेशन डाउन ना हो. तो ऑल दीज थिंग्स आर नीडेड टू बी टेकन केयर ऑफ, एंड विच यू डिड रियली वेल. फिर से अब इसी चीज पे लेट मी लाइक नो फॉर एग्जाम्पल, सपोज कीजिए कल सुबह यूपीएससी का प्रीलिम्स है, ठीक है, सपोज, लेट अस सपोज, ओके, एंड लाइक नो मैंने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा है, मतलब जो पढ़ा है बस पढ़ लिया, बट आई फील लाइक नो अब कुछ भी नहीं पढ़ा है, ठीक है. यू जस्ट कम टू मी लाइक नो कि या हाउ इज गोइंग, लाइक आर यू रेडी फॉर द प्रीलिम्स, and suppose like no meanwhile I will definitely share what I'm feeling inside. So suppose let me say like no Quincy, I couldn't complete this and that. अब आप मुझे एक बात बताओ, अब आप मुझे ये भी बोल दोगे कि ना कि लाइक ये तो बहुत गलत है, पढ़ना चाहिए था पूरे साल, अब पूरे साल नहीं पढ़े तो अब पढ़ के क्या निकालो, लाइक आई गेटिंग. अब उस टाइम अगर मुझे आपने कुछ ऐसा गलत बोला तो वो मुझे कितना लाइक नो, वो मेरे जितना मतलब मैंने हिम्मत की होगी पिछले 5 महीने 6 महीने या साल से कि आई वुड बी राइटिंग द प्रीलिम्स, अब वो सारी जितनी भी मेहनत थी वो ड्रेन हो जाएगी. तो मुझे एक बात बताओ, अब 5 दिन पहले बोलने का क्या ही फायदा होगा. आई एम गेटिंग माई पॉइंट. वो भी तो एक चीज है ना. आई रियलाइज दैट जब आप वो कर रहे थे तभी मैं समझ गई कि हाँ ये जानबूझ के किया जा रहा है, बट वो चीजें होनी चाहिए एक टीचर में, अच्छे टीचर में ये क्वालिटीज तो होनी ही चाहिए. तो सोचो ना, आप अगस्त से लिखो, मैंने अभी आपकी स्क्रीन शेयर किया, वो सभी के लिए इसीलिए कि क्योंकि कई बार बच्चों को लगता है कि लाइक नो वो एक टॉपर वाली बात होती है, ठीक है, कि लाइक नो देखो सिंपल सी बात है, सभी बच्चे जुगाड़ू टाइप होते हैं. जुगाड़ू इन द सेंस कि वो सभी लाइक नो हम बहुत जुगाड़ लगाते हैं. जुगाड़ का मतलब यहाँ पे क्या है कि वी ट्राई टू फाइंड आउट द शॉर्टकट्स, एंड शॉर्टकट्स का मतलब फॉर एग्जांपल लाइक सपोज मी, ठीक है, तो जुगाड़ का मतलब क्या होता है कि लाइक नो फॉर एग्जांपल आप किसी से भी मिलते हो, ही और शी विल सजेस्ट यू अनदर सोर्स, लाइक आपने इकोनॉमी है सपोज, ठीक है, समन विल से आप ये पढ़ो, समन विल से बी पढ़ो, सी पढ़ो, डी पढ़ो, ऐसे करके सपोज करो आपने 10 लोगों से बात की, अब आपके पास 10 सोर्स आ चुके हैं, ठीक है. अब वो 10 सोर्स आ चुके तो अब आपको एक पे तो स्टिक करना पड़ेगा ना. तो एक पे स्टिक होने के बाद अब आपको लगेगा कि अब सामने वाला कुछ भी बोले मुझे नहीं सुनना है, तो मेरी एक शीट प्रिपेयर हो जाएगी कि ठीक है, फॉर एग्जाम्पल लाइक नो XYZ इज अ सोर्स फॉर द इकोनॉमी, अब मुझे वही पढ़ना है, ठीक है. तो वो आपको क्या फिक्स करना पड़ेगा, फिर चाहे एग्जाम कहीं से भी आए, ठीक है. वैसे ही अब ये यूपीएससी के अंदर भी जब हमारे पास अब 5 दिन बच गए, 6 दिन बच गए, तो उसमें लाइक नो, और वो प्रिंसी को पता है, मतलब वो प्रिंसी पे दबाव ऑलरेडी इतने लेवल का बना हुआ था कि आई न्यू कि अब इस पे दबाव डाल दिया ना तो बहुत मुश्किल हो जाएगा. और वो भी ये मैंने आपको स्टार्टिंग के आंसर्स दिखाए, ये प्रिंसी के बहुत स्टार्टिंग के आंसर्स है. एक्चुअली नो आई एम अनेबल टू एक्सेस योर लेटेस्ट शीट प्रिंसी, अगर आपके पास एक्सेस है तो प्लीज फॉरवर्ड करो, लाइक आई कैन ओपन दैट शीट एज वेल. ये सिर्फ मैंने इसलिए खोला है कि आप थोड़ा आइडिया देखो कि आंसर लिखने के पीछे कितनी मेहनत इन्वॉल्व है, ठीक है, और सोर्सेज और लाइक नो वो जितनी भी चीजें होती है तो वो थोड़ा फिक्स करना बहुत जरूरी है, ठीक है. मतलब कि व्हेन आई यूज्ड टू से स्टूडेंट्स कि आपको अब देखो, आप मिस्टेक देखो यहाँ पे लाइक नो इंट्रोडक्शन का साइज या फिर कटिंग, द लेवल ऑफ द कटिंग, स्ट्राइकिंग कितनी है, दिस ऑल थिंग्स मैटर्स अ लॉट. एक एक शीट मैंने चेक की हुई है. अब सी इंश्योर द सेंस ऑफ कंप्लीटनेस, ठीक है. एक कंप्लीटनेस का सेंस का मतलब क्या होता है कि अब आपने फॉर एग्जांपल ये आंसर लिखा है, ठीक है, ये आंसर है बेसिकली द्रविड़ और चोला कॉन्ट्रीब्यूशन पे, ठीक है. नाउ चोला किंगडम या चोलाज की जब बात होती है तो बेसिकली किस चीज की बात होती है, सबसे पहले चोलाज का द्रविड़ कल्चर, ठीक है. अब द्रविड़ कल्चर के अंदर भी सी क्विंसी ने पेंटिंग बता दी, लेकिन क्विंसी ने एक पेंटिंग का नाम नहीं दिया यहाँ पे मेन, ठीक है. क्विंसी ने स्कल्पचर डाल दिया, लेकिन अगेन स्कल्पचर का नाम ओके ब्रॉन्ज स्कल्पचर शिवा वाला डाला हुआ है, ठीक है, ऑल राइट. कॉन्ट्रीब्यूशन इन द द्रविडियन आर्किटेक्चर में गोपुरम लिखा है, 1 और ब्रिक्स वाला डाला है, वाटर टैंक डाला है. तो मतलब कि इसमें अब ऐसा कुछ नहीं बचा जो कि क्विंसी ने मिस किया होगा शायद. और वही है कि आपके आंसर को जब आप एक बार देखते हो तो एक आधा पॉइंट छूट गया तो वो भी मैटर नहीं करता है. मैटर करता है कि यूनिकनेस और कंप्लीटनेस का सेंस आना चाहिए कि मैंने मोटा मोटा सब कुछ कवर कर दिया. फॉर एग्जाम्पल अब ये डायग्राम है, ठीक है, हैव अ लुक एट दिस डायग्राम. अब सी विमान,
गोपुरम, जो कि द्रविड का एक स्ट्राइकिंग फीचर है, गोपुरम, देन वाटर टैंक, ठीक है। इसमें सब कुछ कवर हो गया। अब सपोज यहाँ पे वाटर टैंक नहीं होता या गोपुरम नहीं होता, तो जो दो स्ट्राइकिंग या डिस्टिंग्विश्ड फीचर्स है वो तो मिस ही हो चुकी है। देन व्हाट इज द यूज ऑफ मेकिंग दिस डायग्राम? इस डायग्राम पे 1 मिनट भी लगा होगा, इतना कुछ सोचा भी होगा, ठीक है। तो वेन एवर राइटिंग द आंसर्स, ट्राई कि आप जो लिख रहे हैं वो सारा कुछ यूनिकनेस, एक कंप्लीटनेस, जितने भी अच्छे वाले नेस है, पॉजिटिव वाले, वो सारे कवर्ड होने चाहिए। एक डिसेंट आंसर का अगर टैग मिल जाए तो इसका मतलब है कि ठीक है, ऑलमोस्ट लाइक जो सभी ने लिखा है वही आपने लिखा है और आपने एक आधा पॉइंट एक्स्ट्रा लिख दिया, तो योर जॉब इज डन। मैंने एक रिसेंट हिस्ट्री की शीट आपको टैग करी है, उसमें मैं इसलिए कर रही हूँ क्योंकि उसमें मेरी क्रिएटिविटी का लेवल थोड़ा हाई हो गया था। मैं जब भी उस शीट को देखती हूँ मैं सोचती हूँ क्या सोच के मैंने बनाया था, तो आप वो दिखा सकते हैं सबको। Princey, okay, you have forwarded here. All right. Let me share the screen. Wait. Princey, this one? यस मैम। बट आई गेस ये वाली जो शीट से ये कॉल पे रिव्यू की थी मैंने, इज इट? यस, कॉल पे हुई थी, बट इसके लिए Okay. मतलब आपने बोला था कि सही है All right. मैक्सिमम। Okay, okay. It is under process. Let us see. GS4 sheets भी है आपकी. All right. Okay. Let us have a look over this sheet. Screen is visible. Okay. So here is one more test. Meanwhile, we will be reviewing it as well in case we find any important point to discuss upon. Okay. All right. Here is the creativity. Princey, this is a FLT. Yes, Okay. Have a look upon the creativity level. वेल ये थोड़े से डायग्राम्स तो प्रिंसी थोड़ा सा मिसअपोन हो गया, मतलब यहाँ पे एक्सक्लूसिव में अगर वो आप बनाते तो ज्यादा अच्छे लगते, ठीक है। ये क्या बनाया है प्रिंसी आपने? मैम ये सारी चीजें विद इन टाइम लिमिट जो मैंने 3 आवर्स में लिखा था, ये वैसे पेपर्स हैं, तो इसमें पूरी तरीके से एक्सप्लेन्ड डायग्राम नहीं थे, बट जितनी कोशिश हो पाई थी वो किया था मैंने। I know. Okay, हाँ, this one is a good one. Like, no, ये अच्छा डायग्राम है, ठीक है। अगेन आई वुड से डायग्राम्स भी वही होने चाहिए जिससे कोई सेंस डिलीवर होगा, बिकॉज अगेन लाइक नो डायग्राम बहुत स्पेस लेते हैं, ठीक है। डायग्राम्स बहुत ज्यादा स्पेस लेते हैं। ओके, इसके पहले का एक क्वेश्चन था साइक्लोन पे, वो मैंने मजे मजे बनाया था, जब मैंने बना लिया फिर मुझे खुद हंसी आई थी काफी देर तक कि मैंने क्या किया, ये वाली पर्टिकुलर। I remember. Yes. Exactly. Okay. ठीक है, ये वाला एक और डायग्राम है, जैसलमेर को हाईलाइट किया गया है। अब वेल प्रिंसी लाइक नो अगेन आई वुड से कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो कि बहुत ज्यादा डायग्राम्स बनाते हैं, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो कि डायग्राम्स को हाथ नहीं लगाते, ठीक है। तो आई बिलीव अब जो हाथ नहीं लगाते हैं वो आज से हाथ लगाना स्टार्ट करते हैं। ओके, अब क्योंकि आपका ग्राफ एक सामने मेरे खुला है तो लेट मी शेयर वन थिंग। आई डोंट हैव माइट बी नोटबुक, ठीक है, अभी नोटबुक नहीं होगी, बट लेट मी टेल यू अ स्टोरी। सो देयर वाज अ गर्ल, वेट, ओके, so there is a girl, Madhvi Yadav. She is the I-Force. Okay, Madhvi is her name, Madhvi Yadav, and might be possible hoga agar. So we will definitely have a session with her. Okay, so she is the 2021 batch I-Force. Okay, so when I used to evaluate her sheets, okay, what used to happen कि like no, she was such a brilliant girl कि उसके आंसर में कंटेंट तो कम होता था, एंड आंसर में हर जगह एक मैप, ये व्हाट वी कॉल इट, सॉरी, ग्राफ, ठीक है, बाय ग्राफ टू बी क्लियर प्रिसाइज, ठीक है, बाय ग्राफ होता था उसकी शीट्स। नाउ व्हेन आई यूज्ड टू रिव्यू हर शीट्स, लाइक 2020 में रिव्यू की थी, मतलब 2020 का एग्जाम था,
तो 21 बैच में जब रिजल्ट आया था तो दैट टाइम शी वाज एलोकेटेड द आईफॉर्स फॉरेस्ट सर्विसेज, ठीक है। तो इसका मतलब हुआ कि 2020 वाला जो मेंस था उन्होंने सीएससी भी दिया था और आईफोर्स भी दिया था, ओके। तो उसमें जो भी आंसर्स होते थे शी यूज्ड टू मेक दिस डायग्राम्स एंड लाइक नो, तो वो मतलब उन्होंने उतने साल वो नहीं किया एंड इवन आई डिडंट रिकमेंड हर, लाइक नो आई विल डेफिनेटली नॉट टेक द क्रेडिट कि आई सेड हर दैट मेक इट और समथिंग, ठीक है। एंड लाइक नो उसने 2-3 बनाए एंड आई वाज लाइक कि पहली बात तो इतना डाटा याद रखना हर किसी के कंट्रोल में नहीं होता है, डेफिनेटली आप इतना डाटा नहीं याद रख सकते हो, ठीक है। तो शी वॉज नॉट ओनली गुड विद द डाटा, शी वॉज ब्रिलियंट विद द कॉन्टेंट, द करंट अफेयर्स, द एवरीथिंग, लाइक नो। And definitely, like no, review process was again so comprehensive that time. And actually, that time I never took over the like no written reviews. I used to conduct over the Google Meet only. But the thing is, like no, the sincerity of the diagrams, she never left it. And she was sitting for the 3 attempt continuously that time. Now she left in between. Like since she's settled now, she's in the I-Force, so she is not practicing anymore anything, okay. So the thing is again, and one more thing which I again cannot forget, that she was a student who used to write 1 paper daily, 1 paper daily. मतलब शायद प्रिंसी ने भी 1-2 दिन का गैप लिया होगा माइट बी, बट she had a fixed thing कि she will be writing 1 test daily. and because उन्होंने पहले अटेम्प्ट में इतना पढ़ा हुआ था तो बाद के 3 अटेम्प्ट में पढ़ने की जरूरत नहीं थी खास, लिखा तो इतना कि बस आप पूछो मत। उस बच्ची के घर पे शीट्स, लाइक नो शीट्स का ऐसे लग गया एक पाइल अप, मतलब आप उतनी हाइट में खड़े हो सकते हो, अगर आपकी 5 की भी हाइट है तो आप उसके बराबर में शीट्स खड़ी हो सकते हो। एंड दिस इज नॉट समथिंग लाइक नो, अगेन आई एम नॉट मोटिवेटिंग, आई विल शेयर द शीट इन केस आई गेट इट एंड लाइक नो दैट वुड बी अवेलेबल ओवर द टेलीग्राम, बट सिंस वो 2021 की बात है, ठीक है। सो दैट टाइम शी वॉज राइटिंग अंडर मी एंड दैट वॉज समथिंग लाइक नो दैट रियली मोटिवेट्स मी, लाइक नो कि कोई बच्चा इतना भी लाइक नो, जैसे आप लिखते हो, आप इतनी प्रैक्टिस करते हो, आप चीजों को ध्यान से, वो बच्चे रात को 3 बजे भी लिखती होती थी, अगर आप उस बच्चे को रात को 3 बजे भी फोन करोगे तो वो आंसर्स लिखती। नाउ आई एम नॉट सेइंग कि आप ऐसे हो जाओ 3 बजे 4 बजे तक आप लिखो, आप सो मत, वो बात नहीं है। मतलब बात है एक मोटिवेशन, एक डेडिकेशन, ठीक है, कि आप घर से दूर हो या आप घर के अंदर हो, आप कहीं पे भी हो, ठीक है। एक वो ऑनेस्टी वाली चीज कि आपको कोई नहीं देखा फिर भी आप अपनी प्रिपरेशन में लगते हो। एंड दैट वाज अ थिंग कि आफ्टर 5 years का हार्ड वर्क शी फाइनली गॉट व्हाट शी वांटेड। शी अपीयर्ड फॉर बोथ and but she could clear the I-Force and then she left the CSC interview. उन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया बट मेंस शी क्लियर एंड मेंस में बहुत अच्छे मार्क्स थे, अगर वो इंटरव्यू देती डेफिनेटली 2 digit रैंक पाती। बट लाइक ना वो एक एग्जॉशन नाम की भी कोई चीज होती है कि आप थक जाते हो बहुत ज्यादा तो आप ड्रॉप कर देते हो बीच में और आप नहीं देते हो आगे, ठीक है। दैट वाज अ रीजन, बट बिलीव मी when we say कि diagram, the like no the knock points, the neck point, the time period, इन चीजों का रेलेवेंस होता है, तो ये एक बात मानने की होती है कि हाँ रेलेवेंस तो होता है, ठीक है। उसमें ये नहीं होता है कि लाइक नो ये इतने डायग्राम किसको याद रहते होंगे, वो जब आप बनाने लगते हो ना अपने आप बन जाते हैं, ठीक है। पहले दिन तो कुछ भी नहीं हो सकता ना, जब पहली बार आप एंशिएंट पढ़ते हो, इंडस वैली पढ़ते हो, कुछ भी पढ़ते हो तो आपको लगता होगा ये कौन याद करे, बट वो तो देख लो जब अब आपने सोच ही लिया है यूपीएससी, तो फिर तो यूपीएससी को इम्प्रेस करने के लिए तो सब कुछ करना होगा, जो जो रिक्वायर्ड है यू हैव टू। ऑलराइट, लाइक नो इफ एनीवन इज स्टिल इंटरेस्टेड कैन सी द डायग्राम्स एंड द थिंग, लाइक नो आई यूज्ड टू से कि हमेशा इंट्रोडक्शन के बाद डायग्राम होना चाहिए। मैनी टाइम्स व्हाट यू पीपल डू, ये चीज तो होती ही नहीं है, इट विल नॉट एग्जिस्ट, सीधा डायग्राम का हिट नो, ठीक है। तो डायग्राम आप देख सकते हो, लेबलिंग आपको डेफिनेटली देखनी ही होगी यहाँ पे, ठीक है। लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, लेबलिंग की इंपॉर्टेंस को वी कैन नॉट डेफिनेटली इग्नोर हियर, ओके। ज्योग्राफी है तो पॉसिबिलिटी सिर्फ एक डायग्राम की रह जाती है, इसमें ईयर और वो तो कुछ है नहीं, तो जो पॉसिबल है हमें वो स्किप नहीं करना है किसी भी केस में, किसी भी केस।
सो प्रिंसी लाइक जैसे जो डायग्राम टेस्ट में होते थे उतने ही उसी क्वांटिटी में एग्जाम में भी बने होंगे डायग्राम, राइट? मैम आई डोंट नो व्हाट टू से नाउ बिकॉज जितना मैंने टेस्ट सीरीज में लिखा था, डायग्राम बनाया था, उतना टाइम एक्चुअल एग्जाम में नहीं हुआ था और मुझे उसका स्कोप भी नजर नहीं आ रहा था। बहुत कम जगह क्वेश्चंस में लगा कि यहाँ पे डायग्राम बना सकते हैं। अब इसके पीछे ये भी रीजन हो सकता है क्योंकि वो जो प्रेशर जो था पॉसिबली वो ज्यादा हाइप कर गया था। बट कुछ तो डायग्राम्स बनाए थे, बट जितना मैंने शीट पे डाला है उतना एक्चुअल एग्जाम में नहीं आया था। एंड दैट्स व्हाई आई थिंक दिस वाज द मेजर रीजन व्हाई आई वाज नॉट सेटिस्फाइड विद GS1 पेपर। तो ये भी था। Okay. Okay. I believe इतना ही था इस शीट में. Okay. And now anyone else want to ask anything to Quincy, to me? You are definitely allowed. If any question is there, definitely you will get an answer. Please hit. एंड या प्रिंसी, लेट अस नॉट एक्सपेक्ट कि आपको मेंस वापस लिखना पड़े, ठीक है? डेफिनेटली आई डोंट वांट टू रिव्यू योर शीट्स अगेन. ओके, एंड आई विल नॉट बी रिव्यूइंग. आई रियली विश इसी बारे में बस लाइक नो हो जाए, डन, सॉर्टेड, लाइक नो. आई रियली विश. फुल जब तक होली PDF में नाम नहीं आ जाता तब तक हम कुछ भी नहीं कह सकते, बिकॉज हर लेवल पे अनसर्टेनिटी है. इवन इंटरव्यू लेवल पे देख रही हूँ मैं कि जिस तरीके से समटाइम्स कुछ मॉक्स में ग्रिल किया जा रहा है ऑन द बेसिस ऑफ फैक्ट्स, कुछ मॉक्स में ओपिनियन के बेसिस पे जा रहा है. तो सो इट इज मतलब कुछ भी कह पाना मुश्किल है. बट हाँ, आई विल गिव माई बेस्ट. एंड वन थिंग आई वुड लाइक टू हाईलाइट हियर, व्हाट आई ऑब्जर्व बेस्ड ऑन द मेंस रिजल्ट, कि आपकी जो पकड़ है वो आपके ऑप्शनल पे, एसे पे और एथिक्स पे होनी चाहिए. सी GS में मोर और लेस सब लोग कम ज्यादा परफॉर्म करते हैं, ठीक है? सब करते हैं और सभी इसमें मेहनत करते हैं, तो इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं मिलेगा. आप एज एन स्टूडेंट अगर आप दूसरे स्टूडेंट से कंपेयर करोगे तो थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा. ज्यादा डिफरेंस आता है आपके ऑप्शनल में, एथिक्स के पेपर में एंड एसे में. एंड आई वुड से कि मेरा, अगर मैं इस साइड पे बैठी हूँ और आपको बता रही हूँ, तो उसका सबसे बड़ा रीजन एथिक्स और एसे और ऑप्शनल ही है फॉर मी. GS आई वॉज परफॉर्मिंग एवरेज लाइक अदर स्टूडेंट्स. आई वॉज नॉट बैड. आई वुड से कि बिकॉज मैम ने अच्छे अच्छे सजेशंस दे दिए थे, मैं बुरी नहीं थी. आई वॉज ऑन एवरेज. बट ऑप्शनल मेरी पकड़ अच्छी थी. और उसके अलावा मेरी एसे में मैंने काफी ज्यादा उस पे एफर्ट्स मारे थे, तो एसे मेरी हो गई थी अच्छे लेवल की, और एथिक्स के आंसर बहुत अच्छे हो गए थे. इवन एथिक्स में सबसे अच्छी बात ये थी कि इवन बाय द एंड ऑफ क्वेश्चन, जब बहुत कम टाइम बचा, स्टिल आई वॉज एबल टू पुट सम साइकोलॉजिस्ट या फिर कुछ अच्छे एक्सपेरिमेंट्स, वो मैं डाल पाई थी. आंसर्स अच्छे थे. शायद हो सकता है कि अगर GS में अच्छे नंबर ना आए तो उससे कंपनसेट हो गया. बट यू नीड टू फिगर आउट कि GS में ही सिर्फ नहीं जाना है, आपको ऑप्शनल, एथिक्स, एसे पे भी फोकस करना है. ये चीज है. और ये चीज इसलिए भी बोल रही हूँ बिकॉज मेरी नॉलेज में और भी कुछ बच्चे थे जिनका ऑप्शनल अच्छा था, जिनका उन सबका सिलेक्शन हुआ है, और जिनके ऑप्शनल में इश्यूज रह गए उनका सिलेक्शन नहीं हुआ है. सो सिलेक्शन जो होता है मेजर, वो ऑप्शनल से होता है, एसे, एथिक्स से होता है, GS से भी होता है डेफिनेटली. तो उनको इग्नोर नहीं करना है, ठीक है? तो दिस वाज माय टेक. और जो भी पहले था वो सारी चीजें तो मैंने पहले ही बताई GS के लिए. सो ओवरऑल पढ़ते रहे, कोई कुछ नहीं कह सकता. पॉसिबली हो सकता है कि मुझे दोबारा से एग्जाम ना देना पड़े, पॉसिबली ये भी हो सकता है कि मैं फिर से नेक्स्ट टाइम आपके साथ बैठ के एग्जाम दूं. सो वी कांट से एनीथिंग जब तक रिजल्ट नहीं आता. तो लेट्स होप फॉर द बेस्ट एंड डू गिव आवर बेस्ट.